A very good afternoon, one and all. With the permission of the Regional Director, sir, may I now start the session, sir? Please do. Sir, thank you. We are certainly glad to have everyone here because today's online webinar under the special Swachhta campaign 3.0 of Government of India has been jointly organized by the IGNOU Regional Center, Bhagalpur, Darbhanga and Patna. It is an eco-ethical approach to waste management in Indian perspective by none other than our eminent resource person, Dr. Satya Prakash Mehra, who is the state coordinator, CIFOR, ICRAF Asia Continental Program, Center for International Forestry Research, and World Agroforestry at Rajasthan Agricultural Research Institute. He will be sharing his insights and experiences mainly on the comprehensive agenda, which will cover key topics including waste reduction, recycling, waste to energy, and circular economy principles. I welcome you, sir. Sir, I also welcome Dr. Diksha Dave ma'am from School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies, SOITS, IGNOU headquarters. On this very occasion, I now request our Senior Regional Director from IGNOU Regional Center, Patna, Dr. Abhilash Nayak, to deliver the inaugural address. Sir. Thank you, Dr. Dikshit, for the formal welcome to all our participants here. First of all, on behalf of all the three regional centers, I welcome our resource person for today, Dr. Satya Prakash Mehra ji, who is the state coordinator in Rajasthan for the CIFOR, ICRF Asia, and he is also holding the additional responsibility of the World Forestry Project, and he is working with the Rajasthan Agriculture Research Institute, Jaipur. It is a prestigious assignment for all of us to have Professor Mehra with all of us, and we also have Professor Diksha Dev, Madam, Associate Professor from the School of Interdisciplinary Studies, and she has been kind enough to be here as the special invitee for today's webinar. We all have been organizing, ma'am, for all these online sessions in a collaborative manner. All three, since it is being held online, I am holding the additional responsibility of Darbhanga as well. So whatever meetings we organize it together. And Bhagalpur is also situated in our campus. So we have decided to hold things together. And there cannot be a better resource person than Dr. Mehra to speak on today's topic, that is eco-ethical approach to waste management in the Indian perspective. Since 2014, we all have been talking a lot about cleanliness, Swachhta drives, and all these things. And during this Swachhta campaign 3.0, we are all concerned about doing something very significant to contribute to the maintaining cleanliness in our own environments. So without wasting much time, now I request my colleague Dr. Shalini Dikshit to go ahead with the proceedings. One more thing, ma'am, ma'am and Mehra ji यहाँ बताना हम चाहेंगे, यहाँ पे जो मेरे तीनों ऑफिस के स्टाफ भी है, उसके साथ हमारे एनवायरमेंट साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, एमएससी एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट्स भी है, प्लस हमारे स्टडी सेंटर जो है तीनों रीजनल सेंटर के, वहाँ के स्टाफ भी है मैडम, यहाँ पे वहाँ के एकेडमिक काउंसलर कुछ भी होंगे. तो सभी को मेरे तरफ से, तीनों रीजनल सेंटर की तरफ से हम स्वागत करते हैं. Over to Dr. Dikshit, please. Sir, thank you so much, sir. We are certainly honored to have Dr. Satya Prakash Mehra, sir, with us. He is a trained environmental development professional with an experience of over 23 years in the field of conservation of natural resources and sustainable development through community mobilization. He has achieved academic degrees in environmental sciences, biology, and law. He is involved in the action-oriented conservation research
and advocacy in association with governmental organizations, non-governmental organizations, academia, and consultancy firms. Besides, he has been a guest, visiting faculty, and a resource person, and has delivered several grassroots environmental and conservation discourses to variety of the target groups from students to professionals. He contributed his research work in form of over 150 scientific and popular articles in various journals, periodicals, newsletters, magazines, newspapers, blogs. Also, his contribution in writing field guide books of birds in Hindi, Uttar Bharat ke Pakshi and Bharat ke Sau Samanya Pakshi, were much appreciated. His past professional association with Bombay Natural History Society in the important bird areas and WWF India in regard to conservation of natural resources were milestones in foundations of the conservative actions. Whereas the award-winning waste management models developed the NIUA SBM workshops and gave an opportunity to the governance and the administrators to execute the proposed plan in their jurisdiction. His association with Rajputana Society of Natural History as an advisor and Global Forum for Sustainable Rural Development as an international head gave him the opportunity to mobilize grassroots level workers and stakeholders to contribute on the principle conservation practices for sustainable livelihood. Along with the co-leader partner, Dr. Sarita Mehra, he developed site-specific, globally applicable socio-economic models of the enviropreneurship programs, ABU model, which links protection of habitats and globally important bird species. His understanding of the concepts of waste management in Middle East and European nations while working for the Supreme Site Services in Switzerland, UAE, Afghanistan, Dr. Mehra executed the actions of managing waste in central India, which was much awarded contribution in Swachh Bharat Abhiyan. The solid waste management through development of the site as tourist spot was exemplified at Nagra, whereas liquid or wastewater management through constructed waste at the Academic Association, he is research supervisor and successfully supervised one PhD with another in final summation and have guided 5 master dissertations. He is a recipient of total 13 awards. At present, he is working as a state head for Rajasthan for the Trees Outside Forest Programs of India. His international exposure of working in Europe, Middle East, and Africa has certainly paved way to his utmost excellence in the field of his expertise. So, sir, we are really delighted to have you, sir. Now over to Adi, sir. Sir. Thank you, Dr. Dikshit. I think before we invite Mehra sir, let us invite our special invitee, Professor Diksha Dev madam. Then we will invite Professor Mehra. If you don't mind, sir. Please step ahead because Dr. Diksha ma'am has introduced me to all of you and this platform. So I'm thankful first to Dr. Diksha ma'am. Thanks a lot. Thank you, sir. That's why let's listen to her first, then we will listen to you, sir. Thank you, Abhilash Nayak ji, Senior Regional Director, RC Patna. Thank you, Shalini ji, for giving me an opportunity to address our participants who happen to be our students, academic counselors of various programs. Today, we are discussing a very important subject, and it is our pleasure that Dr. S.P. Mehra with us today, who has an extensive experience in various facets of environmental management in general and waste management in particular. So what we are discussing today, because Swachhta Abhiyan 3.0 has, there has been a lot of focus on the activities
pertaining to educational institutions of what they have been doing in terms of cleanliness drives and Swachhata related activities. So what I perceive waste management to be in the sense that there is a need to look beyond the scientific, engineering, and technical aspect of waste management. But as the title of the talk rightly says, that eco-ethical approach. That means there is also a need when we discuss waste management. Why not look at into the behavioral aspect? Why not explore what is the indigenous knowledge about the culture of the waste management? Because there has been a lot of progress on the engineering aspect, technical aspect. We have a lot of mechanisms and devices which help us in converting waste into a resource, whether it is a biodegradable resource or a recyclable resource. But what is lacking is that why we are not able to implement it in terms of our behavior. So there has been lot of dogma associated with the waste and related services, which happens to be in our mind. Waste related services, there has been lot of, I should say, taboos, lot of down looking at those activities. So today at this juncture, it is important to see that waste is a resource. What we can do, how we can make it as a habit, and what is the role of the various stakeholders. We all are stakeholders, not just as the producers, because as the three regional centers of IGNOU like RC Patna, Darbhanga, and Bhagalpur have taken this initiative, so that comes as a part of our initiative towards addressing the issue of the waste, and how better we can address the problem of waste management, how interventions can really help, what more is required, what actually fails in the implementation of the various rules which have been formed. For example, we say that the plastic ban has been there, but then why it is not implemented at a wider scale? So when it comes to discussion, yes, there are a lot of pros and cons come, lack of alternatives and lack of technology and lack of willingness and awareness on the part of the citizens. So I will not take much time. I will not come in between, but let us hear to our eminent expert for today's webinar. And Please. once again On हो I गया. I thank all the three regional centers for organizing this activity, and particularly for inviting us so that we can also witness the deliberations. Thank you once again, RD sir, Shalini madam, Asif ji, all the other staff of the three regional centers, and thank you once again, Dr. Mehra sir, for accepting our invitation. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your nice introduction of the topic today. I think now we should invite Professor Mehra, and I should not come between Professor Mehra and the participants now. We are looking forward to listening to him. इसको 5 मिनट ऐसी नहीं सब लोग अपन अपन अमितेश जी, फोटो हटा लीजिए। काइंडली म्यूट कर लीजिए, आपका माइक्रोफोन ऑन हो गया है. हाँ, थैंक यू. Over to Dr. Mehra, please. Thank you very much. Thanks a lot once again to Dr. Shalini ma'am, Dr. Diksha ma'am, and of course Dr. Abhilash sir. Now, what it has been mentioned, I won't be the person who is speaking technically, in the field of waste management and whatever the things are there, because there are options, lot of theories, lot of other aspects which are being covered either theoretically or in the chapters or in in such study courses. What I mean to say in present aspect is what we can do. Everything is there. The only thing is that we are missing something. That missing link that is being shared by me, which is, I think, nothing new for any of the participants. So my purpose for any such type of participants who want to do something for the sake of environment, for the sake of mother nature. So I would request the participants and audiences that please think over it,
and simply, these are simply principles or the applied aspects. The only purpose of this presentation is to revive your eco-cultural roots. That is the only aim and objective of this particular presentation. I could not able to, insert my many examples, especially related with, since it is focused on waste management. I had got over lakh photographs and such type of, aspects which could be covered here. But due to lack of time, because yesterday I was having one workshop in Jaipur, and my international team from Africa, Indonesia, Delhi, they all were here along with the participants. So I was completely busy, and luckily yesterday we were not having any lecture. So that was also additional advantage for me. And immediately day before that, I was engaged with different reportings in different areas of Jaipur, as well as the programs which had to be completed by this time. So I was stuck in that. So I could not able to prepare a lot of such information for all of you. But I tried my best to at least give few of the example which generally I use for the common mass. And you all are professionals, you all are working in the field of environmental sciences. I think you will better understand technically, but what we are lacking is that whether these approach, these principles we are following or not. Correctly said by Diksha ma'am that there is some missing link. Whatever the laws are made, that is just the enforcement of particular activity or action or something like, you have to do this. This is the mandatory, and laws are not basically of the Indian origin. These laws were only made by the foreigners. You all know where it started and where who started such type of regulations. So our side, Indian side, was niti, the directions or such type of rules which were Dr. Mehra, sorry for interruption. Kindly थोड़ा bilingual करेंगे तो बढ़िया रहता. Okay, fine. No issue, sir. हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है तो मैं not जी, एक्सट्रीमली सॉरी. मैं बिल्कुल सर, मैं इस बात का ध्यान रखता हूं. मैं जो यहाँ पे अभी एक महत्वपूर्ण बिंदु पे प्रकाश डाल रहा था, वो ये डाल रहा था कि यहाँ पे कुछ नया चित्रण या नया कोई तकनीकी ज्ञान देने के लिए मैं आपके साथ रूबरू नहीं हुआ हूं. और उसमें अभी पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम लोग जो हमारे साथ थे उनको तो आइडिया है, और दीक्षा मैम इस चीज को जानती हैं, और प्लस शालिनी मैम भी 3-4 दिनों में जो हमसे वार्तालाप किए हैं, तो आइडिया लग गया है कि हमने कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है. वो सब आपको किताबों में मिल जाएगी, पाठ्यक्रम में मिल जाएगी, आंकड़े भी बहुत मिल जाएंगे. लेकिन जमीनी स्तर पर हम क्या खो रहे हैं, क्या खो दिए हैं, जिसकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में हमें जरूरी है. जो आज ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो आज विश्व के चुनौतियां आ रही है, स्पेशली पर्यावरण से संबंधित, उसको समझने के लिए. तो अभी जो हम जिन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे या मैं अपना कोई भी अनुभव यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो प्रायोगिक तौर पे जमीन पे किए गए कार्यों से लेकर और आपका जो टॉपिक है उससे संदर्भ में मैं बात कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कार्य थोड़ा मेरा बहुत ही विस्तृत रूप में फैला हुआ है. चूंकि पर्यावरण या प्रकृति कभी भी एक संदर्भ को लेके बात नहीं करती है. जब आप फील्ड में उतरते हैं, अगर आपने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है या कोई भी अपशिष्ट निष्पादन की बात की है या अपशिष्ट प्रबंधन की बात की है, तो हम बिना उसके गहराई में जाते हुए हम उसके प्रबंधन की बात नहीं कर सकते. ठीक है, आपने एक चैप्टर में, एक पाठ्यक्रम में आपने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे प्रबंधन करना है, लेकिन उसकी जड़ क्या है, और जब तक हमें जड़ पता नहीं होगी, वहां हमारा इसके साथ जुड़ाव नहीं हो पाएगा, और हम प्रबंधन में ऐसे ऐसे उपाय दे देंगे जो कि किताबों में अच्छा लगेगा और ग्लैमरस में, मतलब वो कहते हैं ना, गुड़ी सा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, जो कि हो रहा है आजकल. हमारी पॉलिसीज क्यों नहीं जमीनी उसमें बदल पा रही है, उसके पीछे का कारण जो मैं समझ पाया हूं पिछली सरकारों से या आज की सरकार, वर्तमान जो भी केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, जब मेरी उनसे वार्तालाप होती है पर्यावरण मिनिस्टर से या इनसे, तो उनमें यही पहलू को रखा जाता है. और अभी भी पिछले उसमें जब मुझे मौका मिला कई ऐसे
प्लेटफॉर्म्स पे राजनीतिज्ञों से बात करने का या पॉलिसी मेकर्स से बात करने का, तो इस बात के ऊपर चर्चा जरूर हुई। हालांकि उसमें एक बात और आती है कि ये एस्पेक्ट समझने के लिए, क्योंकि दीक्षा मैडम को तो आइडिया है कि हम कहां तक गए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ऑडियंसेस को ये लगे कि ये बड़ा टॉपिक ऐसा है जो हमें कहां लेके जा रहा है। क्या हम भारत की पुनः वो प्राचीन परंपराओं को यहाँ लेके आए तो ये कहां तक सही है। लेकिन सही गलत का निर्णय जब हम कर सकते हैं जब उसको हम यूज करें और अपनी जो जीवन शैली थी प्राचीनतम, जिसमें इको एथिकल अप्रोच थी, यानी कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ थे, प्रकृति पुरुष का जो कॉन्सेप्ट था या अरण्य संस्कृति का जो हमारा एक मापदंड था, उन सबको हमारी जीवन शैली चरितार्थ करती। तो यहाँ हम अभी इन स्लाइड चित्रण के माध्यम से, इस छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से यही कुछ बात करते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने भूमिका दी है, तो मैं अब अपना स्लाइड शो से बात को रखता हूं। कहीं पे भी अगर स्लाइड्स नहीं दिखती है तो कृपया विनोद जी हटा दीजिए हमारा प्रेजेंटेशन, जब तक हमारा रहेगा उसमें। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। देख पा रहे हैं आप स्लाइड शोज? यस यस वी कैन। परफेक्ट परफेक्ट। तो जैसा कि ये टॉपिक ही कह रहा है कि स्लाइड शो मोड में रख दीजिए, ये सिर्फ आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो दिख रहा है, स्लाइड शो मोड में डाल दीजिए प्लीज। हाँ फुल स्क्रीन। एक मिनट, मैं पुनः एक बार वापस इसको शेयर करता हूं। कभी कभी जब हम तकनीकी के ऊपर पूर्णतः अपने उसमें रख लेते हैं तो हमें इन सब चीजों से भी गुजरना पड़ता है। और मैंने कई बार इसका अनुभव भी किया है कि हम लोग डिपेंडेंसी, अभी देखिए पूर्णतः दिख रही होगी आपको पूरी स्क्रीन स्लाइड शो पे? सर नहीं दिख रही सर, वो अभी सर फुल स्क्रीन कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन कर रखा है मैंने नहीं है फुल सर। स्क्रीन किया था। व्हाट इज हैपनिंग? क्योंकि जैसा निरंतर हमारे पाठ्यक्रम में अभी चल रहे हैं उसी प्रकार से मैंने अपना ये दिया है। एंटायर स्क्रीन सर वो कप जैसा बना होता है ना सर, F5 कर दीजिए या तो सर F5। एक मिनट, F5। अभी देखिए अभी भी फुल दिख पा रही है, क्योंकि मैंने अपने स्लाइड शो में मोड में डाला हुआ है, स्लाइड शो मोड में। नहीं सर अभी भी सर नहीं। अच्छा, क्या मैम आपके पास मेरा स्लाइड नो इशू वी कैन we can see like that also. Yeah. No problem. because since there is less content हाँ. slides are very much visible, आप आराम से उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आराम से। अच्छा, तो मैं जारी रखूं अपनी बात? हाँ प्लीज करिए। ओके फाइन। सो तो जैसा मैंने कहा कि ये शीर्षक ही अपने आप में बता रहा है, टॉपिक ही अपने आप में बता रहा है। ये एक्चुअल में मेरे अलग अलग पूरे एक सीरीज बना रखी है, जिसमें जब हम टेक्नोक्रेट से बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, या सिविलियन से सिविल वर्क्स के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करते हैं, या आर्किटेक्चरल प्लानर या डिजाइनर से बात करते हैं, या अर्बन प्लानर से बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक वो रहता है। तो ये एक सीरीज है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशंस एंड इंटरवेंशंस। तो उसके सीरीज के तहत ये पार्ट मैंने रख रखे हैं। तो कई चीजें ऐसे जिन्होंने मेरे पूर्व में देखे हुए हैं स्लाइड शोज, उसमें कई आपको समानताएं मिलेंगी, परंतु विषय का जब विशेषज्ञता के अनुसार बात करनी होती है तो उसी प्रकार से ये इसमें बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं और नए एडिशंस होते हैं ये सभी चीजों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि हम जो बात करते हैं कि पूर्व में हमारा जो कल्चर है वो पूर्णतः प्रकृति के ऊपर आधारित था, और उसके बाद हम अपने आप की अपनी स्वयं की बात करते थे। और तृतीय स्तर पर
बिल्कुल टर्शियरी लेवल पे हम अपने अर्थ की बात करते थे, इकोनॉमी की बात करते थे, और आजकल ये सारा चीज बदल गया है। आज जिस हम पिलर्स की बात कर रहे हैं उसमें पहले अर्थ आ गया, उसके बाद हम स्वयं आए, एंड देन फाइनली इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट अब तीसरे स्तर पर आ गया, पर्यावरण प्रकृति। हालांकि कुछ एक कम्युनिटी का पार्ट है, बहुत ही कम, उंगलियों पे गिनने के लिए, कि जहां पे जो लोग विषय इस पर्यावरण को आज भी टॉप पे रखे हुए हैं और बाकी सभी चीजों को गौण रखते हुए बात कर रहे हैं। हालांकि अभी जो पैंडेमिक आया उसने जरूर सबको झकझोरा कि हमने कहीं सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। और जब इस दौरान मेरी चर्चा हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब यूएन के प्लेटफॉर्म पे हम चर्चा कर रहे थे, तो उस दौरान भी यही बात आई कि हिंदुस्तान का, चूंकि मेरा एक एक्सपोजर रहा है हिंदुस्तान से लेके अफ्रीका और यूरोप तक का, तो वहां पे चर्चा जब हुई तो मैं ये केवल ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर ही ये सब चीजें रही है। हर एक जगह जो हमारे खुद के पारंपरिक या हमारे अनुभव किए हुए ज्ञान पर आधारित जो हमारी एक जीवनचर्या, दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, उसको कहीं ना कहीं उसका प्रकृति से मेल मिलाप था। अब जैसे यहाँ पे चर्चा होती है कि ये 17 जो गोल्स की हम बात करते हैं, जो पूर्व में 7 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, और 2015 में जब इसको 17 गोल्स में बदल दिया। अब आप देखिए, जब आप वेस्ट की बात करते हैं, इन 17 के 17 गोल्स में जब हम बात करेंगे, वेस्ट आजकल हर जगह आ गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था, कि हम उसको वर्कआउट कर सकें। मैं यहां जब आपसे चर्चा कर रहा हूं वेस्ट से, तो एक एक टर्म जरूर बार बार यहां आएगी, इन्वायरोप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसी के कारण यूएन ने हमें जब कॉल किया था कि क्यों ना विश्व की जो 11 सबसे गरीब जगह है उसमें हम पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसे रोजगार का वो करें, तो मेरा एक ये वेस्ट का था, उसमें भी एक उनको दिया गया था कि क्यों नहीं हम जो जिसको अपशिष्ट मान रहे हैं, व्यर्थ मान रहे हैं, उसको ले और उनको एक जीविकोपार्जन से जोड़े। तो जो ये पहला गोल है नो पॉवर्टी वाला, तो उसमें जब हम बात करते हैं कि रैग पिकर्स हो गए या ऐसी ऐसे ऐसे समाज का वो वर्ग हो गया जो कहीं ना कहीं जिनका संबंध कचरे से है, वो भली कलेक्ट करना हो, संग्रहण करना हो, या उसको सेपरेट करना हो, उसको अलग अलग उसमें बांटना हो, या उसको आगे पहुंचाना हो, ट्रांसफर करना हो, परिवर्तित करना हो, वॉट एवर थिंग्स, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन क्या हम प्रत्येक स्तर पर इस तरह की बात सोच के हम कार्य कर सकते हैं क्या? तो ऐसे मॉडल्स जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारा गोल्स, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूं 17 गोल्स, अभी मैं बात चर्चा नहीं करूंगा यहां, लेकिन क्या हम इस प्रकार से कार्य करके हमारे आज जो जिसके प्रोफेशनल्स हम बनने जा रहे हैं, कि स्वच्छता की बात करें या हम व्यर्थ की बात करें या अपशिष्ट की बात करें, जो भी सब्सटेंसेस हैं या वेस्ट है, उन सबको लेके हम पॉवर्टी की बात कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं आराम से। ऐसे ही जब हंगर की बात हुई, जीरो हंगर की बात हुई, कि हम इस पे कैसे बात करेंगे, तो हमारा एक ही बात आई कि आप जिस वेस्ट को ले रहे हैं, स्पेशली जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं या ऐसे पदार्थ जो अपघटित हो रहे हैं, तो क्या उनको ऐसा हम प्राकृतिक चक्रण में लाके क्या हम उनसे अपना कुछ ग्रो कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर और वृहद स्तर पर। तो वहां पे जब चर्चा आई तो इसको कैसे लें हम, अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, न्यूट्रिशियस वैल्यूएबल फूड कलेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको उदाहरण दूंगा फिर राजस्थान से। राजस्थान में अगर आप गंगापुर सिटी से टुवर्ड्स हिंडौन जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ गांव मिलेंगे वहां, और उस गांव में कुछ इसी प्रकार से जो जैव अपशिष्ट हैं उन्होंने उसको कलेक्ट किया और उनसे उन्होंने नर्सरी का डेवलपमेंट किया, कंपोस्टिंग बना के, ताकि उस नर्सरी में, और ऐसे ऐसे पौध का उनमें तैयारी की। एक पौध की कीमत मैं आपको बता दूं, उसकी कीमत होती है 500 रुपए। यानी अगर आपको टमाटर चाहिए, मान लीजिए आप बाजार से लाओगे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितना टमाटर की आपकी खपत है, वो एक पौधा 500 रुपए का जो दे रहे हैं, जिसमें उनको तैयार किया गया इसी जैव अपशिष्ट से, उसमें जो तैयार किया गया, वो एक आपको गारंटी देंगे कि अगले 3 से 5 महीने तक आपको टमाटर बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी, डिपेंडिंग आपका कितना मात्रा में आपको आवश्यकता है और कितने पौध की आपको जरूरत रहेगी। तो वो पूर्ति इस प्रकार की जो छोटी छोटी नर्सरीज हैं जो उन्होंने तैयार की जैव अपशिष्ट से। और जैव अपशिष्ट कैसे तैयार होगा और वो पौध कैसे आएगी?
आपको केवल उस नर्सरी से वो पौध लानी है और वो अपशिष्ट का जो है या तो आप उनको दे दीजिए या वो आपको तकनीक का ट्रांसफर करेंगे कि हम कैसे करते थे। और सामान्यतः इसमें कोई बहुत मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि कहीं आपको बहुत बड़ा विज्ञान पढ़ना होगा और बहुत बड़ी वो करनी होगी। बहुत छोटे छोटे ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से उन्होंने अलग अलग ऐसे संसाधनों का उपयोग कर रखा है। मैं चित्रण अभी उसमें यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में मैं जब ढूंढ रहा था कि मैंने एक बार लेक्चर दिया था उसमें डाले थे, वो मेरे को मिल नहीं पाया और इतना समय मेरे पास नहीं होने के कारण मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन ये उदाहरण कभी आप फील्ड में जाते हैं इस रूट पे तो आपको मिलेंगे। हेल्थ वेलबींग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो बोलना ही कम है कि जितना अपशिष्ट को आप पुनः चक्रण में लाएंगे या दूर करेंगे अपने पर्यावरण से, वहीं पे हेल्थ वेलबींग का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और इसके तहत मैं आपको ये बता दूं कि कल परसों जब हमारा चर्चा हो रही थी तो मैंने एक वल्चर क्लब या वल्चर कैफेटेरिया की बात की थी। वल्चर कैफेटेरिया बेसिकली क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हिंदुस्तान में अभी वो हो नहीं पाया। स्वच्छ भारत मिशन के जब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले थे उस दौरान मुझे मौका मिला था इनको कि कैसे हम सभी का निष्पादन करें और डिस्पोजल करें। तब ये बात हमारी रखी गई थी कि मैं चूंकि ज्यादातर फौना के उसमें जुड़ा हुआ हूं तो कैसे आइडियाज को हम लेके आ सकते हैं। तो वल्चर्स भी खत्म हो रहे हैं और हमारे पास जैव अवशेष स्पेशली एनिमल वेस्ट हो रहा है, जिसका मैनेजमेंट कुछ ऐसे प्रकार से हो रहा है कि जहां कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। तो उनको करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट था। नेपाल ने इसको अप्लाई कर लिया, हिंदुस्तान में नहीं हुआ कई कारणों से, मैं अभी उसकी चर्चा यहां पे नहीं करूंगा। अगर ऐसे फौना या ऐसी बर्ड्स, ऐसी प्रजातियां जो कहीं ना कहीं हमारे ऐसे अपशिष्ट जो एनिमल से निकले हुए हैं, कोई किसी की जानवर की डेथ मर गया, उसका कॉर्पस पड़े हुए हैं और वो उसको कैसे हटाया जाए। अगर वो सराउंडिंग एरियाज में रहेंगे, उसको हटाया नहीं गया तो आप जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि क्या हालत होती है। तो ऐसे कई आइडियाज हैं। हर एक 17 गोल्ड में आपको ऐसे बहुत आइडियाज मिलेंगे जहां पे करेंगे, क्योंकि अपने पास समय लिमिटेड है जिसमें अपन आगे की चीजों पे बात करते हैं। बट ये सारा आपको सोचना होगा। मैंने केवल आपको एक कुछ एग्जांपल्स दिए जिसको हमने प्रायोगिक तौर पे करने की कोशिश की और पॉलिसी मेकर्स को बताने की कोशिश की। मैं यहां जो बात करने वाला हूं आपको, वो केवल देखिए किस चीजों पे बात कर रहा हूं। आपका वेस्ट तो फोकस है ही है इसके अंदर, लेकिन हमारा जो कल्चर है हिंदुस्तान का, वो कैसे हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और आपका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे इस प्रकृति के चक्रण को स्थापित कर सकता है, या जो आप प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि किताबों से जो पाठ्यक्रम से आपने पढ़ा, नंबर लाने के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त है कि आप उनको पढ़िए। लेकिन चूंकि मैम ने हमें बुलाया है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि वो 4 लाइन जो किताब की है वो तो आपको किताब में भी मिल जाएगी, लेकिन उन 4 लाइन के अंदर का भाव समझकर आप प्रोफेशनल्स जब बनने जाएंगे तो कैसे आप उसको जमीनी हकीकत में बदलकर और कुछ ऐसे चीजों का ऐसे आइडियाज का या ऐसे मॉडल्स का मतलब रखेंगे जो कि आपका जो अभी ये जो चैलेंज बन रहा है, चुनौती बन रही है, इससे ओवरकम हो सके हम इस पूरे विश्व के अंदर। तो वो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और चूंकि मेरा एक ही मोटो है जो मैम ने अभी बोला था, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। कोई भी कार्य यहाँ पे आपको मेरा मिलेगा, वो भली प्रकृति के अवयवों से जुड़ा हुआ, यानी कि किसी भी जीव जंतु को बचाने का हो या प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का हो या इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करने का हो, इन सब का वहां पे एक और एक थीम आएगा, वो है संरक्षण। और उस संरक्षण को हमने जोड़ा सस्टेनेबल लाइवलीहुड से, क्योंकि बाबा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये मॉडर्न आज की आवश्यकता है। कटु सत्य है, हम कितने भी बड़े बड़े भाषण दे लें, लेकिन वो जो गांधी छाप है वो जरूरी है तो है। तो उसको लाने के लिए प्रकृति संरक्षण को हमने उससे लिंक किया। तो हमने जो भी अपने कार्य किए, वो CSR फंड से किए हों या किसी में कंसल्टेंसीज में किए हों, उन मॉडल्स को इस प्रकार बनाया कि स्वतः ही उस इंसान को ये ललक हो जाती है, या उस मनुष्य को, या जो बुद्धिमता वाले या बुद्धिजीवी, जिसको सबसे बुद्धिमान जीव इस प्रकृति ने बनाया है, सोच के तो यही बनाया था, लेकिन आगे मैं कमेंट नहीं दूंगा, कि कहीं ना कहीं वो इस अर्थ से अगर जुड़ जाएगा तो संरक्षण पुनः स्थापित उसकी ओर बढ़ने लगेगा। तो ये उद्देश्य सोचा और इसी कारण हमें सक्सेस मिल पाई और ऐसे मॉडल्स हमने तैयार किए। और किया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया, इसमें केवल ये किया कि हमने अपने बिलीफ्स को, हमें ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में, हमारे समुदाय में जो प्रैक्टिसेस चल रही थी, उसके प्रति उनको वापस लेके आए
और कैसे लेके आए। आपके अभी देखिएगा कि किस तरह से हम कोई भी हम अपशिष्ट की बात करते हैं या ये जो व्यर्थ की चीजें इनकी बात करते हैं, तो उनको कैसे जुड़ाव किया और कैसे आगे बढ़े, वो सब हम इसमें बात करेंगे। और ये सारे इसको कहीं ना कहीं मॉडर्न तड़का लगा दिया उसमें, यानी वी यूज सम मॉडर्न अप्रोचेस, कई जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका इसमें उनको समाहित कर दिया, उनसे उनका जुड़ाव कर दिया, उनको संबंध इस तरह से स्थापित किया कि कहीं ना कहीं उनका रोजगार, कहीं ना कहीं उनके संरक्षण, यानी विन विन कंडीशंस के आधार पर ये हो गया। और सोच एक ही थी, वो थी हमारे स्वयं की, हिंदुस्तान की, या वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे खुद की इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस। ये इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में तो आपसे अभी बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही जब अफ्रीका में भी थे हम, तब भी हमने ये किया, मिडिल ईस्ट में थे तब भी हमने यही कार्य किया, और यूरोप में थे। जोरदार बात यह है कि यूरोप जो कि सबसे एडवांस है, मैं वहां पे भी आपको बात बता देता हूं कि यही कम्युनिटी बिलीव्स जो हम देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में ही ये गायों का देश है, सांपों का देश है, जो ये कह के गए फिरंगी, माफ कीजिएगा, वहां पे भी यही बिलीफ होते हैं। और मेरा इस बात को लेके जबरदस्त वहां पे तर्क वितर्क हुआ था, और जिसमें अच्छा ये लगा कि उन्होंने बात को एक्सेप्ट किया, और उनसे हमने एक ही बात कही थी कि हम आपके साथ आए जरूर हैं, कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो शायद हिंदुस्तान के लिए नाकाफी है। क्योंकि मुझे यूरोप जाने का मौका मिला था जल संरक्षण को और जल प्रबंधन को लेके कार्य करने के लिए। तो वहां जब मैं एल्प्स पे घूम रहा था और एल्प्स को लेके बात कर रहा था, तो वहां के बिल्कुल डिफरेंट था। पानी वहां वेस्ट नहीं होता था, और अगर वेस्ट भी हो रहा है तो उनकी तकनीकें इस प्रकार थी कि उन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ था। तो हमने उनसे एक ही बात बोली कि मैं जिस हिंदुस्तान के भाग से आया हूं, वहां पे एक बूंद की कीमत हर कोई जानता है कि किस प्रकार से उसको सेव किया जाए। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जब हम बात करते हैं कि WHO क्या हमें देता है, तो उसको भी हम ध्यान देते हैं, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल बदल जाता है ये सिनेरियो। ऐसे ही आपके बिहार में भी बदल जाएगा, हिंदुस्तान के एक एक कोने में, हर जगह आप देखिए ये बदलेगा। तो हमने केवल बिलीफ को लिया और उनको बताया कि उनके लोग क्या सोचते हैं। जब हमने उनसे बोला कि, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा असेसमेंट करना है। जब वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स में हम कार्य कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से जब हमारी वार्तालाप हुई, तो हमने कहा कि हमें आप उन मार्केट्स में ले जाओ जहां पे प्राकृतिक के जो संसाधन हैं उनका उपयोग हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है। तो जो सोशल मोबिलाइजर्स थे उनके साथ हमारा मूवमेंट हुआ, और जब उनके साथ मूवमेंट हुआ, पहले तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, और फिर उनके साथ जब हमने वार्तालाप चालू की और शुरुआत की, तो लोकल स्टेक होल्डर्स से या कम्युनिटीज से जब मुलाकात हुई, तो वो अपने बिलीफ बता रहे थे कि हम क्या सोचते हैं और हम कैसे कर सकते हैं। यू वोंट बिलीव कि वहां जो हमने मॉडल्स दिए, सेम उन पे, उनके बिलीफ पे, उनकी जो इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस थी, उनके आधार पर जब दिया और बताया उनको कि अब आपके आधुनिक जो भी आप प्रक्रियाएं ले रहे हैं, जरा इनसे संबंध करिए, वर्कआउट करिए। तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा उन्नत है, हम तो बहुत उन्नत थे, हैं और रहेंगे। हमें केवल मात्र जो भी आधुनिक हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से स्मार्टली हमारे पुराने जितने भी ये कल्चर है, हाँ, जो अभी चरितार्थ नहीं हो सकते, कई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें पुरानी जो है उसमें आज चरितार्थ नहीं है, तो वो हमें अपने समझ से समझना होगा, वहां बुद्धि का उपयोग करना होगा। तो हमने क्या किया, हर वक्त जो भी अभी हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की या व्यर्थ की, हमने नीचे की बात सुनी, और नीचे की बात सुन के ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या बनाया, उन दोनों को बस ज्वाइन कर दिया, ताकि जो एक रेस्पेक्ट और रिगार्ड हम जिनके साथ कार्य कर रहे हैं, तो आप जब प्रोफेशनल्स काम कर रहे हो, तो जिस भी ऑडियंस के साथ आप काम करें, अगर मान लीजिए आप साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे या तकनीकी उच्च उनके साथ आप कार्य करेंगे, तो बट नेचुरल है कि आपको यहाँ आंकड़े भी बताने पड़ेंगे, यहाँ आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स पड़ेगा। परंतु जब आप जमीनी स्तर पे कार्य करेंगे, तो वहां पे आंकड़े और इससे काम नहीं चलेगा। उनको तो उनको जो चाहिए, उनकी नीड बेस्ड, यानी नीड बेस्ड असेसमेंट के माध्यम से आप अपने जो भी टारगेट दिमाग में लेके आए हैं या जो भी उद्देश्य लेके आए हैं, उसको चरितार्थ करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और तब जाके आप जिस पॉलिसी को आप वहां पे इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं वो करिएगा। क्योंकि आप स्वच्छ भारत मिशन में आप देख लीजिए, वो भी मेहरा सर, डॉक्टर मेहरा जी, आपका स्लाइड्स मूव नहीं हो रहा है। अभी भी नहीं हो रहा है? नहीं। ओह, जस्ट अ मिनट, ये आई थिंक रुक जाता है तो जो मैं कल परसों बात कर रहा था उसमें भी मैंने यही बात की थी कि ODF की जब हमने बात की,
तो हम बहुत उस पे बात कर रहे हैं कि हमारा ओडीएफ कितना सक्सेसफुल रहा, हमने आंकड़े दिए, हमने बहुत कुछ इसमें बातचीत की। अभी दिख रहा है? अभी स्लाइड वापस? Yes, yes, जी yes. सर, जी परफेक्ट, परफेक्ट। सो जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, वो ये सारी वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, या किसको हम बता रहे हैं, हमारा ऑडियंस कौन है, या हमारा जो बेनिफिशियरी कह रहे हैं। तो ओडीएफ का जब मैं एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने गांव में बहुत काम किया, और मुझे शहर पसंद भी नहीं आता है। मैं गांव में ही मैक्सिमम रहता हूं, गांव में ही जितने भी मॉडल्स तैयार किए राजस्थान में। इसीलिए आज अगर मेरे से कोई पूछता है कि मेरा पता क्या है, तो मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। मैं यत्र तत्र सर्वत्र आपको हर जगह मिल जाऊंगा। और मेरी बोलेरो है जिसमें मेरा सारा सामान पड़ा है, वो मेरी जहां रुक जाती है वही मेरा घर हो जाता है। और स्पेशली गांव के साथ जब हमारी सरकारें बना रही थी स्मार्ट सिटी की बात, और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बात कर रही थी, तो हमने केवल एक पत्र लिखा और उनमें हमने एक ही बात की। क्योंकि इस समय वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय मंत्री इससे संबंध रखते हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान से उनका जुड़ाव है। जब उनसे मेरी वार्तालाप हुई, तो हमने उनसे यही कहा कि राजस्थान के अंदर के जितने भी आपको ऐसे एग्जांपल्स हैं, उनको आप देखिए, और फिर देखिए कि आप कैसे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, सक्सेसफुल केस स्टडीज कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ अपनी असमर्थता जताई। उनका वाजिब था कि आज एक कॉर्पोरेट जगत में कहीं ना कहीं हमें लॉबिंग की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने ये बात रखी। तो मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या आप इस वेस्ट के ऊपर भी इस प्रकार की लॉबिंग कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो दूसरा पहलू है। लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें होती है। तो हम जो आसानी से बात करते हैं, जैसे मेरे सामने एक और बात आई थी कि प्लास्टिक के ऊपर ये कही जाती है, तो कई जो ऑडियंसेस होती हैं या यूथ आते हैं, युवा आते हैं, तो वो एक बात करते हैं कि सर आप ये बात करते हैं और आप पॉलिसीज में जब इंटरवीन करते हैं, तो आप क्यों नहीं सजेस्ट करते कि पॉलिसी ये प्लास्टिक को बंद ही कर दें, इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दें। तो हमने उनसे एक ही बात बोली कि जरा गौर फरमाइएगा कि आप जब सुबह उठते हैं, जब आप अपने बेड से उठते हैं और वापस बेड पे सोने जाते हैं, तो इस अंतराल ऐसे कौन से जगह है, या एक दिन हमें बताइए जहां पे आपने इस तरह से प्लास्टिक का किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया हो। और फिर अगर आप जवाब देंगे, तो हम बिल्कुल मानेंगे कि ऑफ कोर्स आप हट सकते हैं, दूर हट सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने बात की थी, वो उनसे कही थी कि जो आज के इसमें जुड़ चुके हैं। लेकिन यही मेरा जो संदर्भ था, जब मैं राजस्थान के या मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के ट्राइबल बेल्ट में गया, वहां पे जब मैं जुड़ाव करता हूं, या जब मैं थोड़ा सा अगर कहूं कि हिमालय के अंदर संतों के साथ, साधु संतों के साथ रहा, मैंने उनके साथ भी काफी समय गुजारा, तो वहां दो जगह मेरे को ऐसी मिली जहां पे प्लास्टिक्स बिल्कुल कहीं पे भी उपयोग नहीं था, सिवाय मिट्टी के और या फिर प्रकृति से निकाले हुए पदार्थों का ही उपयोग हो रहा था, पूर्णतः 24 घंटे में। तो ऐसी दोनों स्थिति शायद हम में से कोई ऑडियंस फिलहाल नहीं होगा या होंगी कि जो कि इस प्रकार उपयोग कर पाए। तो उसे हमें सोचना होगा और फिर हमें सजेशंस देनी होगी। तो केवल ये कह देना कि प्लास्टिक का पूर्णतः बंद कर दिया जाए, वो नहीं होगा। यहां पे हमें इको एथिकल अप्रोच की ही जरूरत होगी। तो इसलिए कोई भी अगर हम बात करते हैं, तो हमने क्या कर रहे हैं अभी, जो भी हम वार्तालाप करते हैं या बातचीत करते हैं, या गांव में जब हम बातचीत करते हैं, या प्रशासन से जब हमारी कोई भी इस प्रकार की वर्कआउट रहती है, वो केवल इन्हीं चीजों के ऊपर रहती है। और मैंने आपको बताया कि हर चीज को हमने अर्थ से जोड़ दिया। तो अर्थ से जोड़ दिया, और जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकताएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूर्णतः जागृति होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को अपनी जड़ों, जो प्राकृतिक रूप से हम जुड़े हुए थे, वो जड़, इको कल्चरल रूट्स, और आज आधुनिक विश्व क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं हो कि मेरी बात सुन के, क्योंकि अभी कुछ समय पहले मुझसे एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया था, जब एक बहुत बड़ी मीटिंग में मैं था, गैदरिंग में, मतलब पर्यावरण में। तो उन्होंने बोला था कि सर क्या आपकी बातों से हम ये समझें कि वापस हम पुरातन काल में चले जाएं। तो हमने कहा कतई नहीं जाइएगा आप, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं, जिस वेशभूषा में खड़ा हूं, यह वेशभूषा मेरी पुरातन नहीं है, यह आधुनिक वेशभूषा है।
लेकिन इस वेशभूषा में मैं किन पदार्थों का उपयोग कर रहा हूं, यहां पे मेरे को समझ होनी पड़ेगी, यहां मेरे को सोचना पड़ेगा, और इसका मैं पुनः चक्रण कर पा रहा हूं या इसको अपशिष्ट की तरह लेके जा रहा हूं, या इसका आगे भविष्य क्या हो रहा है, इन सब सामान का जो इस समय मेरे हाथ में है। मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरे पास कैमरा भी है, मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे पास कलम है, मेरे पास कागज है, मेरे पास बैग्स, या मेरे जो कुछ बर्तन वगैरह जो मेरे गाड़ी में पड़े रहते हैं, या मेरी दिनचर्या की जो उसमें कैंप साइट्स के सारे मेरे है पदार्थ, वहां पे अगर आप देखेंगे तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि मैं पुरातन काल में जी रहा हूं। तो मुझे वहां सोचना होगा कि मैं कर क्या रहा हूं, तो वहां पे उसका उपयोग कैसे कर रहा हूं, क्या वो आगे उसका भविष्य इस प्रकार हो रहा है कि मेरे पर्यावरण और प्रकृति को खत्म कर रहा है। जब उस पर चर्चा हुई और उन्होंने मेरे साथ 24 घंटे बिताया, क्योंकि वो एक लंबी उसमें मेरा साथ रहा था, और उनमें जब टीम जब मेरे साथ रही तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के संदर्भ में भी कोई इस प्रकार रह सकता है क्या। अभी मैं जहां से बात कर रहा हूं वो एसी रूम है, मेरा एक ऑफिस है, वेल फर्निश्ड ऑफिस है, जहां से मैं आपसे वार्तालाप मेरी हो रही है। क्योंकि यही वार्तालाप अगर मैं जंगल में होता तो शायद मैं नहीं दे पाता, क्योंकि वहां पे कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती, अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो मुझे सोचना होगा कि किस प्रकार से आधुनिक इसको लेके पर्यावरण को मिनिमम लेवल पे हार्म करते हुए मैं अपने उन प्राचीन जितनी भी इको एथिकल अप्रोच थी उसको अप्लाई कर सकूं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज रहती है, मेरी जगह जगह बात होती है। इसमें देखिए ये दो चित्र बताए गए हैं, एक होता है पूरा पूजन जिसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, या कचरा पूजन अगर सामान्य भाषण में बात करें। हम शादी ब्याह करते हैं तो मेरे पास एक उदाहरण आया, एक बहुत बड़े मेरा साहब आपका स्लाइड मूव नहीं कर रहा, आप हमें भेज दीजिए तो उसको हम कर लेंगे। ऑलरेडी मैडम आपके पास है, शालिनी मैम, शालिनी मैम आपके पास है, तो अगर आप जी सर, जी आप दोनों वहां से दे आप दीजिए। चलाइएगा ना। ओके ओके, श्योर सर, श्योर। प्लीज, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा वो स्लाइड्स में चित्र वगैरह देखने में, दैट विल बात बी। है, आप इतने अच्छे चीजें बता रहे हैं, पिक्चर के साथ उसको रिलेट करेंगे तो बढ़िया लगेगा। जी प्लीज, थैंक यू सो मच। शालिनी मैम 10वें हाँ नंबर सर, स्लाइड। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं कराती हूँ, तुरंत कराती हूँ सर। जी, तो मैं जो बात कर रहा था, अभी मैं चर्चा जारी रखता हूं जब तक मैम वहां पे स्टार्टअप करेंगी। तो जब हम शादी की बात कर रहे थे तो एक बड़ा बिजनेस टाइकून ग्रुप मेरे साथ आया, उन्होंने बोला कि महाराज जी आपका नाम सुना है और हम चाहते हैं कि हमारे डॉटर की, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, डॉटर की मैरिज थी, वो पूर्णतः इकोलॉजिकली, मतलब जो आप कहते हैं, जो हमें समझाते हैं उस पे होनी चाहिए। तो हमने उनसे केवल एक सवाल किया, समय कितना है, संसाधन क्या है, और किस स्थान पे आप कर रहे हैं। तो वो तीनों ही जब उत्तर उन्होंने दिए तो तीनों उत्तर में हमने उनको एक बताया कि 100% इकोलॉजिकल मैरिज संभव आपके संदर्भ में नहीं हो पाएगी। तो बोले कि अगर 100% नहीं हो सकती है तो क्या एक लेवल पे हम कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक लेवल पे कर सकते हैं। तो उसमें जब हम ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि प्री वेडिंग, मतलब जो एक्चुअल हम जिस पे जा रहे हैं, फेरे जिसको हम बोलते हैं, 7 फेरे होते हैं, उससे पहले के प्रोसेशन की हम बात कर रहे थे, पुराने 1 महीने की बात कर रहे थे, या आगे के पोस्ट वेडिंग उसके होने के बाद की परंपराओं पे हम जब बात कर रहे थे, तो उसमें से ही यहाँ पे जब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरा पूजन जिसकी हम बात करते हैं, या कचरा पूजन हम जिसकी बात करते हैं, वो एक जरूर टर्म आता है। और जब मैं भरतपुर में हमने क्रिएट किया तो वहां पे तो आए दिन कोई ना कोई बात होती है, और वहां पे ये हमने जाना है, आपको आना है। अब वहां जाते ही हमारा पहला प्रश्न यही होता था कि आपने ये कचरा रखा कहाँ है, किसको कचरा कह रहे हैं, कचरा क्यों कह रहे हैं, कूड़ा क्यों कह रहे हैं। तो पुराने जो बुजुर्ग लोग थे वो हमारे कुछ प्रश्नों से परेशान भी होते हैं, लेकिन बड़ा आनंद आता था जब उनकी हम खुद की इंटरप्रिटेशंस होते थे, उनके अनुभव, उन पे हम बात करते थे कि भाई आपके नाना दादा ने आपको क्या बताया और आपने ये परंपरा क्यों की और किस तरह से लेके गए आप। तो ये जब चीजें आती है तो हमें वापस सोचना पड़ता है कि हमारी जो ऑलरेडी जो शैली थी उसमें कहीं ना कहीं प्रकृति का इतना जबरदस्त समन्वय था कि जिसको हम मतलब अलग कर ही नहीं सकते थे। सिमिलरली अभी आपका त्योहार आने वाला है, दिवाली, बड़ी वो होती है, तो ब्रिज में ही थे हम। अब ब्रिज के अंदर दिवाली से ज्यादा गोवर्धन पूजा को बनाया जाता है। तो जब गोवर्धन पूजा, और मेरे ख्याल से उत्तर भारत में सभी जानते हैं गोवर्धन पूजा क्या है।
अब जब उनसे हमारी चर्चा हुई तो हमने कहा हम आ जाएंगे, क्योंकि अनेक गांव हमें बुलाते थे और वहां पे बुला के बड़ा अच्छा लगता था, हमें मान सम्मान भी मिलता था, और मान सम्मान उस वे में कि ताकि उनसे बातचीत हो सके। मैम कर पाए हैं स्लाइड शो? या तो उसमें हम जब गोवर्धन पूजा की बात करते थे तो क्यों कर रहे हैं गोवर्धन पूजा, क्यों आप गोवर्धन का ये कर रहे हैं, और ये है क्या एक्चुअल में, और किस जगह से आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। अच्छा बनाते कैसे हैं आप, इसको कैसे लेके आते हैं, तो जब इसकी अपन विवेचना करेंगे तो इस पे एक हमने आर्टिकल लिखा है, अभी बहुत लंबी चौड़ी इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कितना अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट का एक यहाँ पे हमारा बड़ा अच्छा प्यारा सा वो था कि दिवाली को साफ सफाई करना है और फिर उस कचरे को इकट्ठा करना है, और उस कचरे को इकट्ठा बेसिकली वो कचरा ऐसा नहीं कि आज की तारीख में जो प्लास्टिक वाला आ गया कि जिसको हम पुनः चक्रित करने के लिए कहीं बाहर का मैकेनिज्म लेना पड़ेगा, पहले तो प्राकृतिक रूप से उसका चक्रण होता था, तो प्राकृतिक चक्रण में ही उसका उपयोग होता था। तो वो पूरा जो कलेक्शन था, वो कलेक्शन कहां होता था, कैसे होता था, निश्चित स्थान होता था उसका, और उस स्थान की पूजा होती थी। मतलब ये बहुत अच्छा प्रोसेशन हमारी मैरिज सेरेमनी में होता है, और जो घर में वधु आती है उस वधु को भी ये बताया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि जो लक्ष्मी आई है कि हमारे यहाँ पे कौन सा स्थान है जहां पे आपको इस पूरा जो अपशिष्ट आपके घर का निकला है उसको इकट्ठा करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये सारी परंपराओं को हमने खो दिया। तो गोवर्धन पूजा में जब हमने चर्चा की उनसे और उनको बताया, तो इस पे एक साइंटिफिक आर्टिकल भी हमने थोड़ा सा लिखने का प्रयत्न किया, और उसमें जो फोटोग्राफ भी डाला वो ओरिजिनल फोटोग्राफ है, जिसको वहां पे हम बकायदा गए और लोगों को सेंसिटाइज किया। मुझे अच्छा ये लगा कि कुछ गांव ने इसको अडॉप्ट कर लिया। मोटे मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि ये जैव तकनीक की वो एक मैनेजमेंट प्रक्रिया थी जिसके तहत हम बायो फर्टिलाइजर्स नॉर्थ इंडिया में तैयार करते थे, और वो जिसकी आजकल काफी डिमांड होती है कि कैसे हम उन जीवाणुओं को तैयार करने के लिए कल्चर मीडिया तैयार करें, क्योंकि सर्दी आने लग जाएगी ये दिवाली के बाद से। तो इस दौरान जो बैक्टीरिया जो हमारी सॉइल के लिए अच्छे हैं, जो फ्लोरा हमारे लिए अच्छा है, उसका इतना उस टेम्परेचर में ग्रोथ नहीं होगा। तो कैसे हम इस तकनीक के माध्यम से, यानी इस गोवर्धन पूजा के माध्यम से उसको कलेक्ट करते थे, और सभी लोग यहाँ पे प्रोपोगेट करते थे सीड्स को, वो अपने अपने खेतों के सीड्स लाके यहाँ रखते थे और प्रोपोगेशन होता था, और फिर उसको कलेक्ट करके ले जाके और उसका स्प्रे हमारे खेतों में करते थे। और यही पानी के साथ वो जो कलेक्शन हुआ है गोवर्धन जिसको हम बोल रहे हैं, जो एक हमने आकृति बनाई है, उस आकृति को अपने अपने खेतों में इरिगेशन के माध्यम से बहाया है। तो बीज और बायो फर्टिलाइजर्स के बैक्टीरिया, 10वें नंबर की स्लाइड पे आ जाए मैम, तो उसको हम कैसे लेके जाते हैं, उन सबका वहां पे बहुत महत्वपूर्ण पहलू बताया गया था, और उसका उपयोग पूर्णतः नहीं हो पाया है आजकल। अलग अलग हो गया, क्योंकि ना तो कोई इतनी मेहनत कर रहे हैं और ना ही इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो वहां पे हमें सोचना होगा क्या हम कर सकते हैं, क्या हम प्रोफेशनल ऐसे सेंसिटाइज कर सकते हैं। और आगे करिएगा मैम। तो ये चीज हमें, हाँ, और यस यस दिस वन। सो ये दो चित्र आप देख रहे हैं, तो एक तरफ मैंने पूरा पूजन की बात करी है, और ये सेंट्रल इंडिया से लिया गया है और नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। ऐसे कई मैरिजेस मैंने ट्राइबल्स के साथ देखी है, बट वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो राइट हैंड साइड में है ये ब्रज का है, आपके ब्रज में ये बहुत होती है। तो इसके अंदर जो भी ये चित्रण किए गए हैं, ये भी आप देखें कि किस तरह से ये इकट्ठे हैं। तो जब हम यहाँ बात करते थे उनसे, उनको लेके, तो गांव में सेलिब्रेशन तो करते ही थे, उनके मुताबिक कार्य भी करते थे, लेकिन उनको ये भी बताते थे कि हम क्या इसके अंदर कैसे हम इस वाकई जो व्यर्थ नहीं था उसको हमने व्यर्थ बना दिया और अपशिष्ट बना दिया। उस अपशिष्ट को क्या हम वापस रिटेन कर सकते हैं क्या? तो हमने इसका पुनर्उपयोग या पुनर्चक्रण या जो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण था उसको स्थापित अपने जो सेंटर्स बना रखे हैं या अपने जो गांव जो हमारे नजदीक थे उसमें तो हमने इसको प्रतिपादित कर दिया, लेकिन हर जगह नहीं कर पाए। ये हमारी नाकामी कहें या कहीं ना कहीं इको एथिकल अप्रोच का पुनः कहीं ना कहीं बिखराव कहें, ये सब चीजें इसमें थी। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर ये पूरा उठाता हूं गोवर्धन को और उसको लेके अगर मैं अपने खेतों में डालता हूं उस पर्टिकुलर गोबर को या इसको, क्योंकि देखिए ये जो गोवर्धन बनाया गया है आप सबके यहाँ आप जानते हैं इस चीज को, ये गोवर्धन कितने दिन तक रखा जाएगा, इसके अंदर जो पूजा के अंदर जो सामग्री है वो कौन कौन सी चढ़ाई जाएगी और कौन कौन से बीज को इसमें रखा जाएगा और कितने टाइम तक रखा जाएगा,
जो गांव के लोग हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं सामूहिक रूप से, वो कब इसको लेंगे, बीजों को कब लेंगे और कौन से बीज को कब लेंगे, ये सारी बहुत प्यारी व्यवस्था हमारी इस गोवर्धन पूजा के अंदर दे रखी है। तो कभी मौका मिलेगा तो इसके ऊपर मेरा एक विचार भी है, लेकिन राजस्थान से श्री कृष्ण जुगनू साहब हैं जिन पे मेरी चर्चा हुई थी कि क्यों ना हम इस व्यवस्था को जो भी हमारे पुरातन उसमें बड़ी सामान्य भाषा में लिखें, आज के साइंटिफिक प्लेटफॉर्म की दृष्टि से आज के परिप्रेक्ष्य में इसको लिखते हुए हम कार्य करें। तो आप जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप इन सब चीजों के वैज्ञानिक महत्व को लिखते हुए और अगर आप प्रतिपादित करते हैं या कहीं पे आप इस मॉडल्स को तैयार करवाते हैं, तो इससे बड़ा योगदान आप प्रोफेशनल्स का कहीं नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये चीजें हमें देखनी है। तो हमने जैसा आपको पहले ही बताया कि बाबा बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो हमने क्या किया, इकोलॉजी को बैक माइंड में रख दिया, क्योंकि पहले हम बड़ा हाहाकार करते थे। जब मैं अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जहां भी जंगल में घूमता, मुझे लगता कि ये डिस्टर्ब हो रहा है, ह्यूमन की प्रेजेंस है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता और मैं तुरंत वहां पे एक्टिविस्ट की तरह कार्य करने लग जाता था। लेकिन बाद में वक्त के साथ प्रकृति से ही ज्ञान लेते हुए प्रायोगिक तौर पे ये समझ में आया कि भाई ह्यूमन तो सबसे बड़ी कड़ी है। आप उसको दूर करके अगर ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रकृति को बचा लेंगे, तो वो संभव नहीं है। तो वहां पे फिर हमारा ये इजाद हुआ। और आप विश्वास कीजिए, मुझे शिक्षा किसने दी, एक प्यारे से जनजाति युवक ने। उसने मुझे बोला था कि आप सर इतनी बात बाबूजी इतनी बात करते हो कि ये पेड़ को बचाना है, ये जगह को बचाना है, ये ऐसे करना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पूरा दिन का जो रोजी रोटी है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप या तो ऐसा करें कि हमें जीविकोपार्जन का ऐसा साधन करवा दें। तो उनकी बात जायज थी कि मैं जा रहा हूं वहां पे, उसके साथ 3 महीने 4 महीने रह रहा हूं, मैं अपने उसमें से पॉकेट से मनी देके उसको कह रहा हूं कि मुझे जरा घुमा दीजिए, या मैं अपनी गाड़ी में बिठा के उसको घुमा रहा हूं, तो क्या उसको जरूरत नहीं होगी गाड़ी की, उसको जरूरत नहीं होगी उस अर्थ की? बिल्कुल होगी। मुफ्त में कोई अनाज या वो नहीं देगा, क्योंकि हमने वो पेड़ खो दिए हैं, हमने वो जो हमारी ओरिजिनल क्रॉप्स थी वो पैटर्न खो दिया है। अभी मुझे सौभाग्य मिला है, वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री ने स्पेशली राजस्थान में मुझे इसलिए कॉल किया कि आप यहाँ आके इसको आप संभाल के और पुनः प्रतिपादित करो वृक्षों को, उन वृक्षों को जिसमें हमें पूर्णतः भोजन मिलता था। तो अभी मैंने कई स्कीम्स यहाँ पे की है, और कल जो वर्कशॉप हुआ है उसमें यही डिस्कशन हुआ था कि हम इन चीजों को वापस कैसे ला सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं, कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं, और कौन से ऐसे अनाज है जिनसे जोड़ के एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। राजस्थान के किस पार्ट में, उत्तर भारत के किस पार्ट में, इंडिया के किस पार्ट में, या वर्ल्ड के किस पार्ट में वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री इस प्रकार से कार्य कर रही है। तो ये सारा जुड़ाव हम कर रहे हैं। और इसमें भी देख लो, जो पेड़ अगर मैं लगाने की बात कर रहा हूं, तो वहां पे भी ये कि भाई लाइवलीहुड का सोर्स बने, वो पेड़ उस किसान को या जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए कहीं आमदनी का स्रोत बने। तो जो मैंने मोटो आपको बताया था, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इन दोनों बिंदुओं को ही ध्यान में रख के ये कार्य भी हो रहा है। क्योंकि इससे पूर्व में मुझे गुजरात में मैं था, वहां के जब गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था तो पानी को लेके वहां कार्य था, तो वहां रिवर फ्रंट्स और उनको लेके जब कार्य किया तो कच्छ का मुझे पार्ट दिया गया, जो बिल्कुल टफ टेरेन वहां पे कही गई है। तो वहां पे भी जब हम बात कर रहे थे तो उधर भी यही सेम चीज थी। जब वहां बात थी तो कैसे जिस पानी को हम बेकार मान रहे हैं या व्यर्थ मान रहे हैं, तो आप एक नमकीन पानी जो प्राकृतिक अवस्था में मिला हुआ है रन के अंदर, और क्वालिटेटिवली हम उसको पीने योग्य नहीं मान रहे हैं उनको, और एक जो आप अपने घरों में यूज कर रहे हो उनको, दोनों को लेके और क्या हम कुछ ऐसे तैयार कर सकते हैं? अगर करते भी हैं तो उसको इस तरह से करें कि कहीं ना कहीं हमारा रोजगार भी जुड़ जाए और हमारा प्राकृतिक पर्यावरण मेंटेन भी रहे और हम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सामान्य है। तो ये हमने किया मैम, और आगे करते जाइए, क्लिक करते जाइए। सेम पैटर्न है जो मैंने अभी बात बोली है कि पूरा मेंटल सेटअप एक्शन उसमें कर दिया। अब ये देखिए, ये उदाहरण दे रहा हूं राजपूताना शकुंतलम का, क्योंकि कई दफे ये सवाल आता है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, क्या आपने कुछ ऐसा किया है क्या? तो सौभाग्यशाली हूं मैं कि नहीं, पहले मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। तो जब उदयपुर में जो हमारा स्थान है, वहां पे मैं क्या क्या कर सकता था परिस्थितियों के अनुसार, वहां पे इंटरवीन करने के बाद जब मुझे मौका मिला कि पूर्णतः 100% मैं पर्यावरण के साथ लेके कैसे कार्य कर सकता हूं, तो मुझे भरतपुर में मौका मिला। और ये जो एक निर्माण किया इस छोटे से सेंटर का, इसमें वो सारी चीजें जितनी भी आपसे मैंने बड़ी बड़ी बातें की है या बड़े स्तर पे जो कार्य किए हैं, वो एक छोटे स्तर पे कैसे कार्य किया है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। इसमें आपको हर चीज का चरितार्थ मिलेगा।
इसमें वही था, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि भरतपुर सूखा हो चुका है और पानी वहां पे फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, फिजिकल तो ड्राइनेस हो ही गई है, लेकिन फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस भी यहाँ पे आ गई थी। तो उन दोनों को मेंटेन करना, और तीसरा जो पानी वहां पे उपयोग लिया जा रहा है, उस पानी से जो पानी खराब हो रहा है, उस व्यर्थ के पानी को उपयोग में कैसे लाना है। इसके अलावा जो वहां पे इन्वायरमेंट था, वो ये कहता था कि कुछ ही पेड़ पौधे वहां उग सकते हैं, तो ऐसा हार्श इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेट कंडीशन, उसको कैसे मेंटेन करना। तीसरा, आप जो भी वहां पे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं, वो उस धरती के लिए कितने अच्छे हैं, कितने बेकार हैं, उन सब पे ध्यान देना था। तो अलग अलग पहलू थे। तो यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच में इस पूरे सेंटर का निर्माण किया। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हमने पानी को लिया। इस पानी में देखिए ऐसा लिया गया था, हालांकि विलेजर्स ने और उन लोगों ने हमें दान देने की बात करी थी कि हम आपको कुछ 16 बीघा जमीन दान दे देते हैं। हमने मना कर दिया कि नहीं, दान नहीं लेंगे, हमारी पॉकेट जितना अलाउ करेंगे उतना हम ले लेंगे। तो हमने ये 1 बीघा लैंड में पहले वर्कआउट किया। अभी करीबन 2.5 बीघा के करीब पूरा ये लैंड है जहां पे ये सारे जो भी हमने एक्शंस लिए हैं वो काम किया है। नेक्स्ट मैम। तो अंडरग्राउंड वाटर और अपर ग्राउंड वाटर को पहले यहां देखा। अच्छा बुरा पानी, जिसको भी हम वेस्ट वाटर कह रहे हैं, जिसको ब्लैक वाटर कहते हैं, आप जब व्यर्थ की बात करते हैं, अपशिष्ट की बात करते हैं, तो तरल पदार्थों में पानी, गंदा पानी जिसको हम बोल रहे हैं एक सामान्य शब्द में, और अलग अलग तकनीकी भाषा में हम अलग अलग देते हैं, वो भले टॉक्सिक हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे कैसा हो। इस पूरे कैंपस में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा, क्योंकि हवा का भी हमने ध्यान रखा, पानी का भी ध्यान रखा, और अग्नि तो खैर है ही है। तो वास्तु जिसकी हम बात करते हैं, इसमें पूरी तरह से वास्तु का उपयोग किया गया। जो उस वास्तु का इसलिए किया कि वास्तु कोई ऐसा नहीं है कि प्राचीनतम ऐसी दे दी गई। उसमें हमने यहाँ के लोकल मैसनरी से बात किया। नेक्स्ट स्लाइड मैम। उसमें हमने जब बात कर रहे थे, तो लोकल कारीगरों से हम जब बात कर रहे थे, तो उनको हमने पूछा कि कैसे बनाना है। हमने अपने ज्ञान को पीछे ही रखा, ज्ञान नहीं लिया। तो आर्किटेक्चरल डिजाइनर बोलता है कि हम आपको 1.5 साल में आपका ग्राउंड फ्लोर में जितना आपको कंस्ट्रक्शन एरिया चाहिए वो हम बना देंगे। 1.5 साल, 35 लाख रुपए, 2012-13 की बात बता रहा हूं। लेकिन हमने कहा ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हमारे पास इतना समय है। जब लोकल कारीगरों से या लोकल मैसन से बात किया, गांव के जो अपने रूरल उसमें रहते हैं, जो बनाते हैं झोपड़ियां, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर जी, आपका हम तैयार करते हैं, आप बताइए कैसे करना है। हमने कहा ना तो झोपड़ी होगी ना ये पक्का होगा, सीमेंट कंक्रीट केवल लिमिटेड नंबर में, और आयरन का बहुत मिनिमम उपयोग होगा। सारी बातों पे गौर किया। उनको दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर और हुडको 2 जगह विजिट करवाया, और उसके बाद ताजमहल का दिखवाया, और उसके बाद उनको बुलंद दरवाजा या आपका जोधा अकबर महल जिसको हम बोलते हैं, फतेहपुर सीकरी, वहां विजिट करवाने के बाद थोड़ी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उनको अपनी वास्तु की पूरी जानकारी और प्राचीन जो हमारी वास्तुशास्त्र में आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग और प्लानिंग थी, उसका थोड़ा सा ज्ञान की उनके साथ चर्चा की गई। और उसके बाद उन्होंने, आप विश्वास कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड, 4 महीने में ये तैयार कर दिया। और इसके अंदर तैयार करने में हवा, पानी, अग्नि तीनों को ध्यान में रखा गया। जब वायु को ध्यान में रखा गया कि वायु का कैसा है, तो जोधा अकबर महल में ब्रज के आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग से, और जब इसकी फाउंडेशन रखी गई, तो ताजमहल में नीचे फाउंडेशन कैसे लगी हुई है। आप ताजमहल ऊपर से देखते हैं, उसके नीचे क्या है, वैसे उस पर मैं अभी जाऊंगा नहीं कि वो ताजमहल एक्चुअल क्या है क्या नहीं है, उसके नीचे कैसे बना हुआ है, वो सब बात की बात है, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चरल इन्वायरमेंटल स्पेशली ग्रीन आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग में काफी वर्क किया है, और कई स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पे जब आते थे तो उनके साथ उनको बताया कि आप नए नए डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तो ताजमहल का एक एग्जांपल मैं जरूर देता हूं, वो मैंने अभी यहां नहीं दिया है, कि उसके नीचे जब पुराना वो बना हुआ था स्ट्रक्चर, और कैसे उन्होंने कहा था कि यमुना किनारे बने होते हुए भी उसमें सीलन नहीं आ रही है। भरतपुर पूरा सीलन वाला इलाका है, और डैम्पनेस आप देख लीजिए, जो मुंबई से या महाराष्ट्र से इधर से बिलोंग करता है, या नॉर्थ इंडिया में, इवन बिहार यूपी में कई ऐसे जगह होंगे जहां पे पानी ऊज करता है, और मकान नए बनते से ही सीमेंट में आपके सीलन आ जाएगी। 1 साल में तो आपकी प्लास्टर और वो उतरना रहेगा। तो लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 2012-13 में जो निर्माण किया गया, उसमें जब इसका ध्यान रखा गया, तो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो, अपर वाटर फ्लो, सरफेस वाटर फ्लो, और अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाए, तो 1973 में राजस्थान में सबसे जबरदस्त बाढ़ आई थी, उसके आंकड़े ध्यान में रखते हुए इसकी डिजाइन की गई कि डिजास्टर मैनेजमेंट भरतपुर में कैसे, क्योंकि भरतपुर बाढ़ को कैसे उससे बचाव किया जाए, उसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक रूप से मॉडल्स है जो चाइना उपयोग कर रहा है, और चाइना ने भरतपुर मॉडल के नाम से ही ये दे रखा है। और आपका बिहार में
यूपी में जब मुझे मौका मिला था निटर चंडीगढ़ के माध्यम से जाने का, तो वहां पे हमने कई गांवों में कई जगह इन चीजों के ऊपर भी बात किया था, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कि इन पानी को आप कैसे कवर अप कर सकते हो, ले सकते हो, और ऐसे कौन सी डिजाइनिंग मेंटेन कर सकते हो जो हमारे पारंपरिक वहीं की हो। तो इसमें उसका उपयोग करते हुए, नेक्स्ट स्लाइड मैम, उसको लिया और पानी पीने लायक कैसे बनाए उसको किया गया। फिर इसके अंदर जब हम इसको उपयोग करेंगे तो बट नेचुरल है कि कहीं ना कहीं इसमें टॉयलेट्स होंगे, किचन्स होंगे, और कई प्रकार का पानी का उपयोग करके हम इसको पानी को गंदा करेंगे ही करेंगे, और फिर उस पानी को हम उपयोग नहीं करेंगे। इस पूरे कैंपस में एक भी बूंद बाहर नहीं जाती है, क्योंकि इस जो भी जिसको भी हम गंदा पानी बोल रहे हैं उसको ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट भी किससे किया, ये रीड बेड सिस्टम, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। अब ये कई इंडस्ट्रीज ने भी हमारे उसमें लगाए, मैं अभी आगे बताता हूं। मैडम समय का मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कहां रुकना है, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे पास। कितना समय और मिल सकता है मैम? आप जितना ले सकते हैं। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट ही मैं बताऊं। तो इसको देखिए, ये उसमें हमने उपयोग किया, एक बूंद भी इससे बाहर नहीं जा रहा है जिसको हम गंदा पानी कह रहे हैं। और रीड बेड सिस्टम में सबसे जोरदार बात यह है कि इसके अंदर जो पूरे जिससे साफ हो रहा है, जिस तकनीक से, जिस प्रक्रिया के तहत ये सफाई हो रही है, वो भी प्रकृति के ही अवयव है, यानी वो वनस्पति जो इसको साफ कर रही है, और उसके माध्यम से इसको हमने साफ करके सर्कुलेट करवा के रिचार्ज किया, और इसका उपयोग हम इसमें ले रहे हैं। जहां इस पूरे एरिया में पानी पर्टिकुलर समय में ही जमीन में मिलता था और इन आसपास के उसमें खींच लिया जाता था, 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे 12 ही मास पानी अंडरग्राउंड सब सरफेस वाटर अवेलेबल होने लग गया। और आसपास के जो खेत थे, उन्होंने उनकी जब मोटर चलती थी, मेजरमेंट हमने सिंपल उनकी मोटर से किया कि आप कितना दे रहे हैं, कि सर ये हमारे तो पानी, यानी इस कैंपस का जो फायदा था वो आसपास के उनको भी मिलने लग गया, और उन्होंने इन सब चीजों को जाना, इसको उपयोग किया। फिर हमने अलग अलग गांव में बड़े स्तर पे भी इसका एग्जीक्यूशन किया, वो आगे की स्लाइड में बता दें। नेक्स्ट स्लाइड मैम, ये है गंदे पानी का देखिए सफाई। ये देखिए, ये देखिएगा आप किस तरह से वनस्पति का उपयोग है। जो भी कंस्ट्रक्शन किया हमने प्रकृति से क्षमा मांगी। देता है ना, उसका ललन कुमार जी कृपया काइंडली थोड़ा लेटर नंबर वगैरह तब चढ़ा होगा, म्यूट कीजिए, विनोद जी को म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, तो उसमें हमने, आप देखिए जो ये बच्चे हैं आज लहला रहे हैं, आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं उसी एंगल से जिस एंगल में जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस एंगल के फोटोग्राफ ऊपर देख लीजिए, उसका कंपैरिजन देख लीजिए। 3 टाइप के अलग अलग एंगल के फोटोग्राफ्स यहां आपको दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखिए सामने, और अब आप सामने से फोटोग्राफ करेंगे नहीं दिखेगा। राइट हैंड साइड में टॉप पे अगर आप देखेंगे कैसे कॉर्नर से फोटोग्राफ ले रहे थे और कैसे उसमें चला, और नीचे आप देखिए पूरी बिल्डिंग आज इन बच्चों ने कैसे कवर अप कर ली है। तो प्रकृति आज लहला रही है, जिस प्रकृति को वहां पे कहा जाता था कि केवल 4 या 5 या कुछ हार्ड स्पीशीज यहां होती है, कितनी स्पीशीज है जरा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो जीरो वेस्ट की हम यहाँ पे इसलिए बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे कैंपस में हमने हर चीज पे बहुत स्ट्रिक्टनेस रख रखी है। वैसे चंबल का जो इलाका है, कोटा से लेके भरतपुर का, बड़ा टफ टेरेन कहा जाता है। राजस्थान के इस पार और मध्य प्रदेश का या यूपी का ये पार्ट बड़ा जबरदस्त कहा जाता है। मैं इस पे अभी आपको नहीं बोलूंगा कि क्यों कहा जाता है, बट ये जरूर है कि आपको मालूम होगा कि चंबल के डाकू क्यों फेमस रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड टेरेन यहाँ पे होगा। लेकिन एक बार अगर इनको दिमाग में आ गई तो ये कार्य बहुत करते हैं। हमें बहुत तकलीफें हुई इस टेरेन में काम करने के लिए। मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था 2 इयर्स में, लेकिन उसके बाद जो मुझे सहयोग मिला, इन्होंने मुझे अपना वहीं का बना लिया। मेरे सारे कार्ड वार्ड अभी अगर स्थिरता से कोई मेरे कार्ड्स वगैरह देखेंगे तो एड्रेस भरतपुर का ही मिलेगा, जबकि उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, हर जगह इस समय मेरे पास रहने के स्थान हैं। तो ये जीरो वेस्ट हुआ। तो यहाँ पे वही लोग जिनको हार्ड नट्स बोलते थे उन्होंने मेंटेन किया, और ये एक उदाहरण क्रिएट किया। आसपास के 34 विलेजेस इन सबको उपयोग करने लग गए। वेस्ट उन्होंने अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर और अपने फैमिली स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, और धीरे धीरे करके अपने मोहल्ले, कम्युनिटी और अपने गांव के स्तर पर भी उसको मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना वो चालू कर दिया। और जब मुझे वो बुलाते थे तो मेरी एक शर्त रहती थी कि मैं तभी आ पाऊंगा अगर
आपने पिछले 1 साल में ये कार्य किया हो और अगले 1 साल में प्रकृति के रूप में आप जो योगदान दे सकते हैं, आपने ये योगदान दिया हो तो। और उनका जब अश्योरेंस मिलती थी, तभी मैं उनके जो भी फैमिली ये रिचुअल्स होते थे, कन्वेंशंस होते थे, व्हाटएवर, उनके जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते थे, उसमें मैं शिरकत करता था। और वो बड़े गौरवान्वित महसूस होते थे जब हम जाते थे, हमारी टीम जाती थी, तो उनको अच्छा लगता था कि आज सर, मैडम और पूरा उनका टीम आया है यहाँ पे, और कमिटमेंट देते थे। तो इस प्रकार से देखिए कैसे ये परिवर्तित होता है, हृदय परिवर्तन, माइंड परिवर्तन, ये आप लोगों के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये सिंपल तकनीकें हैं ना, आप सब जानते हैं इसमें ये क्या है क्या नहीं है, ये हमने प्रायोगिक उस कैंपस में कर रखी है, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये स्वयं हम करते थे। मैं निरंतर खड़ा रहता था, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कोई भी याद है, ये सब हाथ से तैयार किया है। राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, मैंने अपने चित्र इसमें नहीं डाले हैं, लेकिन जो हमारी टीम साथ में रहती थी उनके चित्र ज्यादातर मैंने उपयोग में लिए हैं यहाँ। परंतु मुझे बड़ा आनंद आता था जब मैं इन सब का उपयोग करता था और इनको लेता था, क्योंकि हमारी प्राचीन परंपराएं जो थी, कहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं, वो सब वर्कआउट करने के लिए इसको बड़े स्तर पे भी हमने इंप्लीमेंट कर रखा है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये सब आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बायोगैस, अब देखिए बहुत बड़ा मॉडल तो नहीं था, लेकिन छोटा मॉडल था, और कैसे स्लरी का उपयोग कहां हो सकता है और कैसे लेके जा सकते हैं। अभी तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आ गए हैं, 2019 तक के चित्र हैं, लेकिन उसके बाद तो अब ये पूरा एक सेंटर ही नहीं, इसके चारों तरफ एक जंगल बन चुका है, और अभी वर्तमान के फोटोग्राफ में इंसर्ट नहीं कर पाया हूं, लेकिन इन सब का उपयोग, और इस बायोगैस को बकायदा अंदर उपयोग हो रहा है किचन के अंदर। यानी हमने ऐसा नहीं कि एलपीजी नहीं रख रखी है, वो भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली बायोगैस का भी उपयोग हो रहा है इसमें। हम इस कैंपस में सोलर का भी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जियोथर्मल का हमने केवल आधा ही प्रोसेस कर पाए थे, क्योंकि उसके लिए एक तकनीकी रूप से जो एक जगह चाहिए थी, वो हमें अनुपलब्ध हो पाई, इसलिए हम उसको तैयार नहीं कर पाए, तो वो आधा अधूरा हमारा यहाँ वर्क रह गया था। अदरवाइज पहली बार आपको जियोथर्मल एक लोअर लेवल पे भी यहाँ पे देखने को मिल सकता था। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये सारी आपकी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ये देखिए बायोडायवर्सिटी प्रोफाइल, ये छोटे से कैंपस 50,000 स्क्वायर फीट एरिया का, इतनी 150 प्रकार के प्लांट है, 250 बच्चों को हमने यहाँ पे अपने साथ लाने की कोशिश की, जिसमें से अच्छा सभी इंडिजीनियस, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी फिरंगी हम लेके आए। सबसे पहले तो जो स्थानीय प्रजातियां हैं, फिर उसके बाद नियर अबाउट, यानी जो भरतपुर में मिल रही है, फिर ब्रिज में मिल रही है, फिर ब्रिज के आसपास के जो अरावलीज में जा रही है, और कुछ लेवल पे अरावली से थोड़ी सी दूर और जा रही है, यानी एरिड से जो एफिनिटी थी, जीरोफिटिक या मरुद प्रकार की जो वनस्पति थी, यानी हर वनस्पति का यहाँ संगम किया, और आज 150 प्रजातियों के वृक्ष, छोटे बड़े, पांचों स्तर के, मतलब आपने 3 लेयर्स का फॉरेस्ट का वो पढ़ा होगा, लेकिन हमारे 5 स्तर है। 7 स्तर का हम यहाँ नहीं बना पाए, क्योंकि उसके लिए और जो जरूरत थी वो आगे की जरूरत है। आने वाले समय में आप 7 लेयर्स भी यहाँ देख सकते हैं, लेकिन 5 स्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो बच्चे यहाँ लहला रहे हैं इस पूरे उसमें, और आप गूगल से अगर करेंगे तो आपको पूरा, और यहाँ पे करीबन 134 प्रकार की चिड़ियाएं इस पूरे कैंपस में निवास करती है, जिसमें से 25 प्रकार की चिड़ियाएं अपना घोंसले के साथ रह रही है। और स्पैरोस की बात करें तो अभी इस समय 22वीं या 23वीं जनरेशन चल रही है, और 250-300 प्रकार की 250-300 प्रकार इंडिविजुअल स्पैरोस के यहाँ रह रहे हैं। 30 से ज्यादा प्रकार की तितलियां हैं यहाँ पे, 10 से ज्यादा प्रकार के सांप है, प्रत्यक्ष देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड। कई है, मतलब ये छोटे से चित्र बता रहा हूं। पहली बार गांव वालों ने कोबरा को इतने नजदीक से फिल्मांकन किया इस कैंपस में, और वो कहते थे कि नाग देवता, नाग पंचमी हम बात ही करते हैं, गोगा देव जी को हम मनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लगा कि नाग की क्या महत्वपूर्ण बात है। जब यहाँ पे कौवे आते थे, तब वो कहते थे कि कौवे हम पितृपक्ष में कनागत में बुलाते ही हैं, लेकिन कैसे ये वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कनागत में ही हम क्यों याद कर रहे हैं इनको, तो बड़ा आनंद आता था इनको। गुबरेले, बीटल्स, जो छोटे लेवल पे हम बात करते हैं कि जिस वेस्ट को ये परिवर्तित कर रहे हैं, उस वेस्ट को परिवर्तित करने के लिए जो हमें जानवर चाहिए, वो कीट जब यहाँ पे पढ़ते थे कि तरह तरह के बीटल्स, तो आप देखिए अलग ही आनंद आता है इन सबको देखने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये अलग अलग विजिटर्स हैं। राइट हैंड साइड में टॉप पे जनरल विजिटर्स हैं जो यहाँ आते हैं। अंदर दीमक के लिए हमने घर के अंदर दीमक के लिए स्थान दे रखा है, तो हम ये कहते थे कि कोई भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं है,
तो घर के अंदर किसी भी प्रकार से बहुत सिंपल ये ब्रिज कल्चर पे आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग की गई है। और उसी के नीचे जब फॉरेनर्स आते थे तो इकोलॉजिकल, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को जानने के लिए वो हमसे वार्तालाप करते थे, चर्चा करते थे और प्रत्यक्ष वहां पे विजिट करते थे। और सीधे हाथ की तरफ अगर टॉप पे देखेंगे तो ये सब टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को देखने के लिए यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। और नीचे मैनेजमेंट के, प्रबंधन के, इसके अंदर ये एक एक इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। लेकिन आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे आपका कोई भी ट्रिपल आईआईएम भी हो, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स हो, हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट, उन सब के इंटर्न्स वो यहाँ पे आकर अपनी यहाँ पे इंटर्नशिप पूरी करते हैं। लेकिन जो आधुनिक ज्ञान है उसको हमारे इको एथिकल अप्रोच से कोरिलेट करके अपने आगे की कैरियर में अपनी संभावनाओं को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये जैसा मैंने बोला कि हर कार्यक्रम को हमने कहीं ना कहीं अर्थ से जोड़ दिया, तो इसलिए मजा भी आया। कैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको अगर आपने अर्थ से जोड़ दिया तो डेफिनेटली है आपकी एक सक्सेस रेट बहुत हाई लेवल पे चली, हायर साइड में चली जाएगी। और आप जो मॉडल्स या जो आप प्रोफेशनल्स तैयार होने जा रहे हैं, पर्यावरण विज्ञान के हों, चाहे आप वेस्ट मैनेजर्स हों, चाहे आप पर्यावरण के कोई से भी अवयव के हों, डेफिनेटली अगर मैं चिड़िया बचाने की बात करता हूं, लेकिन चिड़िया से अगर वो रोजगार ले सकता है या ले सकती है तो डेफिनेटली मेरी चिड़िया वैसे ही बच जाएगी। अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता हूं तो वेस्ट मैनेजमेंट से अगर उनको कहीं ना कहीं अर्थ से जोड़ देंगे, इंसेंटिव्स अगर आप दे देंगे, रिवॉर्ड्स कहीं दे देंगे, रिकॉग्नाइजेशन दे देंगे, तो डेफिनेटली उनका जुड़ाव इससे हो जाएगा। तो हमें यही सब पहलुओं पर ध्यान रख के आगे अपने प्रोफेशन को जारी रखना है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो आपके जैसे शायद डिग्री होल्डर्स नहीं है, ये वो बच्चे हैं, ये वो पौध हैं जो हमारे साथ जुड़े। और आज की तारीख में इनमें से ये सारे गांव के वो बच्चे हैं जो शायद बायोलॉजी की वो लेके डिग्री लेके नहीं आए होंगे, लेकिन टेक्सोनॉमी में अगर इनसे बात करेंगे तो ये हर जीव जंतु को बता देंगे। अगर आप प्रजातियों की बात करेंगे तो ये बता देंगे। अगर गंदे पानी को साफ कैसे करना है तो ये आपको बता देंगे कि गंदे पानी को साफ करने के लिए कौन सी प्रजातियां यहाँ पे उपयोग में लाएंगे। अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करनी है तो ये आपको बता देंगे कि सॉलिड वेस्ट में कौन सा वेस्ट है जिसको हमें रिसाइकल में, रीयूज में लेके जाना है, कौन से ऐसे वेस्ट है जिसको रिड्यूस करना है, कौन से ऐसे वेस्ट है जो हमें खेतों में पहुंचाने हैं और हमें पुनः चक्रित करने के लिए हमें उसका उपयोग लेके आना है, किसका क्या उपयोग करना है, ये सारे बच्चे बता देंगे। ये इको वॉरियर्स हैं जो हमारे वहां पे तैयार हुए हैं उस पूरे ब्रिज में। आज ये बहुत ये बड़े हो गए हैं बच्चे, ये मेरी पुरानी फोटोग्राफ्स हैं बहुत इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। ये महिलाओं का है जिनको किया है, ये मेरे ख्याल से पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट से लेके उसमें, तो पुरानी जो हमारी गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार थी, उसमें हमें मौका मिला था। ग्रीन माइक्रो फाइनेंसिंग उन्होंने इसको ऐड भी किया था प्लानिंग कमीशन में। दुर्भाग्य से इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, लेकिन जब 2014 में सरकार का परिवर्तन हुआ उस समय इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। और जो वर्तमान सरकार है इन्होंने इसको बकायदा इसको उपयोग में लिया और इसको उपयोग करते हुए आगे चरितार्थ भी किया। तो ये हमें सोचना होगा कि हमारी जो पारंपरिक जो भी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, टैलेंट था, जो स्किल्स था, वो महिलाओं का हो, बच्चों का हो, ग्रामीण परिवेश का हो, उसका जुड़ाव प्रकृति से था। और उस प्रकृति से जुड़ाव में अब ये घास, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि पर्यावरण में घास का और सेकेरम का नॉर्थ इंडिया में क्या उपयोग है। ये सॉइल कंजर्वेशन या सॉइल वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन को कैसे वो लेके आती है और कैसे यही गंदे पानी को भी सफाई करती है, फिल्टर का काम करती है, कैसे पोरोसिटी को इंक्रीज करती है, कैसे वो लोम सॉइल या क्ले सॉइल उसके अंदर पानी को अंदर अंडरग्राउंड वाटर में जाने के लिए पोरोसिटी को इंक्रीज करते हुए अपना योगदान देती है। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज इसको हटा दिया, इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन इस उपयोग को पुनः हमने चक्रित किया और जो ये नए आर्टिफैक्ट बनाने हैं, तो आज जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उससे इनको जोड़ दिया। आज डिमांड बहुत हाई है, लेकिन इसका अभी भी उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी विधि है, उसमें फिर कभी चर्चा करेंगे। जब हम महिलाओं के SDG 5 की बात करते हैं, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो ये क्या उपयोग कर रही है, इसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं, कितने दिन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत लंबी इसमें कहानी है जो इन्हीं से हमने समझी है, जानी है। और आज इसमें कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसको वर्कआउट कर सकते हैं, तो वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, वो सारा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये वही ऑर्गेनिक कल्चर थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अनाज आपको बोरियां दिख रही है, कट्टे दिख रहे हैं ना, ये कोई किसान जिसको हम कह रहे हैं उन्होंने नहीं, किसानों ने ये कह दिया था कि बाबूजी बात करना बहुत आसान है, जरा आप खेत में काम करिए। तो ये सब हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया ऑर्गेनिक
ग्रेन्स है, मस्टर्ड और व्हीट, ये 2 हमने यहाँ पे ग्रो किए और इनको बता दिया कि जितना आप कर सकते हो उतनी की उतनी क्वांटिटी में देखिए, बिना इनको यूज किए हुए। और राइट हैंड साइड में जो जायद फसल की वो बात करते हैं या फल फ्रूट्स की बात करते हैं, सब्जियों की, तो कैसे एक ही जगह आप उत्पादन कर सकते हो ये सारे। और घर के अंदर एक्वापॉनिक्स हो, चाहे आपका एरोपॉनिक्स हो, उसका उपयोग कैसे होता है। देखो रूम के अंदर ही गार्डन कैसे बना रखा है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब प्रायोगिक हमने करके उनको बोला कि आप ये मत मानिए, हम बोल जरूर रहे हैं लेकिन हम आपके जैसे कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रकृति ने कार्य शायद और कुछ दिया है, आप लोगों के साथ बात करने का दिया है, इसलिए हम उस कार्य का अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आपको जो कर्तव्य दिया है, आप अपनी जमीन से दूर मत होइए। और आप ये पुराने जो प्रक्रियाएं हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट इजीली हो सकता है अगर आप कंपोस्टिंग या अपने बायो फर्टिलाइजर्स को आप यूज करें, गोवर्धन पूजा को यूज करें। तो ये जब हमने, अच्छा ये जुड़ाव भी किससे किया, ये किस जमीन का हमने उपयोग किया, इससे जेल की जमीन से। तो जेल की जब हमारे रिफॉर्मिंग, वो अलग स्टोरी है, कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। तो हमने आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन, हरे कृष्णा, ऑरबिंदो सोसाइटी, इन सबको एक जगह लिया है हम। भली वो मथुरा वृंदावन के संत, साधु संत हों, चाहे चर्च से पादरी हों, चाहे हमारे मस्जिदों से मौलवी हों, उन सबको एक मंच पे लाके हमने एक ऐसा क्रिएशन किया कि हम कैसे इनको लेके आ सकते हैं। और जेल के अंदर जो कैदी थे उनके साथ हमने ये सारे प्रयोग किए, और वो भी बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरे कुछ पेपर्स में आप उनके साथ भी कार्य को देखेंगे, और कभी मौका मिला तो इनमेट्स के साथ हमने जो कार्य किए इन सब चीजों का पर्यावरण में, और उनको कैसे इसमें जोड़ा, उनकी कैसे फौज तैयार की, उनमें से जो टैलेंटेड लोग हैं जो किसानी करते थे और वो कहीं ना कहीं अंडर ट्रायल थे, उनको रिफॉर्म करके कैसे किसानी में इन चीजों पे लेके आए। महिलाएं थी, उनको कैसे आगे लेके आए, या जो जो अलग अलग सेक्टर से थे वो लेके आए। तो उदयपुर की जेल हो, चाहे जयपुर की जेल हो, चाहे भरतपुर की हो, अजमेर की हो, इन सब में हमें मौका मिला। तो वो ह्यूमन फोर्स हमने इसमें अप्लाई किया इन सब चीजों के लिए। तो ये जो अनाज और ये सब पैदा किया है, इसमें ओपन जेल की एक रहती है, तो उन इनमेट्स के साथ हमने काफी इसमें कार्य किया। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए होलिस्टिक अप्रोच में, ये घर के अंदर जब हम बाहर बात करते हैं, अगर नहीं है आपके पास, तो मशरूम कल्चर हो, चाहे रूट ट्रेनर्स वाली जो बात हो, चाहे एक्वाकल्चर की बात हो, इन सबको हम घर के अंदर ही हम अपना वर्कआउट कैसे कर सकते हैं और किस लेवल पे कर सकते हैं, वो सब हमने प्रायोगिक तौर पे वहां पे अलग अलग मॉडल्स को तैयार किए और उस पर कार्य चलते, मतलब अनवरत चल रहे हैं ये। नेक्स्ट, बच्चों को तैयार किया इसमें। अब ये देखिए वृद्ध स्तर पे, ये एक छोटे स्तर पे था, लेकिन वृद्ध स्तर पे देखिए सेम चीज मैंने आपको बोला ना कि जब तक आप जिस जगह, आप अगर वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बात क्योंकि आपको जरूरत है, आपकी पॉलिसी में है, आप उसके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसके लिए वो आपकी जीविकोपार्जन का साधन है। लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उससे उससे मतलब नहीं है, उसको तो उसकी दिनचर्या, उसकी जीवन शैली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो आपको कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करना पड़ेगा, उसकी असेसमेंट करनी पड़ेगी, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी जरूरत है। इसीलिए जब रूरल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, या सिंपल हम एमबीएस और इसमें हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, चूंकि मुझे मौका मिला यूजीसी के कुरिकुलम को डेवलप करने के लिए, एमबीए रूरल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें हमने प्रायोगिक तौर पे इन सब पहलुओं को डाला कि एमबीए भी आप करो, लेकिन ऐसे करो कि बच्चों को ज्ञान हो, थियोटिकल नहीं, प्रायोगिक ज्ञान। तो मैं चूंकि एक विजिटिंग फैकल्टी हूं शिमला के अंदर, हिमाचल, उसमें एमबीए रूरल मैनेजमेंट, तो वहां जब इसमें मौका मिला तो ये कार्य किया। और एसपीजेएमआर में चूंकि जब मैंने अपना एमबीए किया डेवलपमेंट सेक्टर में, तो वहां पे भी इन मॉडल्स को वहां पे प्रायोगिक तौर पे अप्लाई करवाया और उनके कोर्स कंटेंट में डलवाया। तो बायो लॉज को इंट्रोड्यूस करवाया इस मैनेजमेंट के अंदर। तो वो क्यों करवा पाया, क्योंकि मुझे पता था कि जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है। तो आप लोग भी प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा अपने उसको करने के लिए। नेक्स्ट मैडम, थोड़ा फटाफट कर लेते हैं अपन। तो ये देखिए समस्या क्या थी, पानी को लेके। आप वेस्ट मैनेजर्स हो, बहुत अच्छी चीज है, आप वेस्ट मैनेजमेंट करो, लेकिन जिस जगह जरूरत, जिसकी आवश्यकता है, तो देखिए ये इतने विलेजेस हैं जिसके अंदर ये एग्जीक्यूशन हुआ, तो अपन बहुत थोड़ा सा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये सीएसआर प्रोजेक्ट्स के तहत हुआ था, हमें फंड मिला था। नेक्स्ट, ये एक जगह अलग अलग उसमें, और नीचे वैज्ञानिक आंकड़े, साइंटिफिक आंकड़े दिए हुए हैं जो आपको साइंटिफिक जर्नल्स और पेपर्स में भी मिलेंगे और रिपोर्ट्स में भी मिलेंगे, जो आगे उपयोग में लिए जाते हैं। हर चीज का कैलकुलेशन, यानी साइंटिफिक विधि से सबको एक जगह तो जनरल पब्लिक के लिए, जनरल मास के लिए हमने मेंटेन कर रखा है, लेकिन साइंटिफिकली भी हमने सारा इसका डेटा मेंटेन कर रखा है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड। मैं अभी ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड करिए। यस, इस पे मैं आपको थोड़ा सा आपको गौरतलब करना चाहूंगा। देखिए, जो हमने रीड बेड सिस्टम की बात की थी लोअर लेवल पे, यानी जो एक सेंटर हमने व्यक्तिगत स्तर पे बनाया, ये एक गांव था। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, तो उन्होंने बोला कि आप पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं क्या, आप पानी हमारे इसमें ला सकते हैं। तो हमने कहा पानी का तो केवल एकमात्र प्राकृतिक सोर्स है बारिश, और जमीन में आपने खत्म कर दिया। सरफेस वाटर जो भरतपुर का था, जो बाढ़ग्रस्त इलाका था, 3 नदियां वहां पे सूख गई, क्योंकि जो सो कॉल्ड विकास की बात चली, तो उसमें तीनों नदियों ने मतलब आज की तारीख में वो खत्म हो गई। तो उनको छोड़ दें, तो अब पानी आप कहां से ला रहे हो? कि हमने कहा आप पीने के लिए पानी या उपयोग में तो लाते होंगे ना, कि हाँ, तो जरा कितना लाते? तो हमने कैलकुलेशन किया उनका कि कितने लोग हैं, कितना कंजप्शन हो रहा है, और कितना पानी वो वेस्ट के रूप में जनरेट कर रहे हैं। ध्यान देने बात देखिएगा आप। तो उनका जब कैलकुलेशन आया, तो हमें पता चला कि कितना वॉल्यूम उसमें आ रहा है। और ये एक ऊपर आप देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्लाइड डाली है। आप लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे 3 छोटी छोटी पिक्चर्स देखेंगे, तो ये स्कूल का चित्र है। पूरे गांव का गंदा पानी और ऐसा कीचड़ युक्त पानी इसमें आता था, और ये सीन था। उसके बाद आप नीचे जरा बड़ा चित्रण देखिए, यही स्कूल में उस गंदी जगह पे देखिए आप क्या हो गया। ये है रीड बेड सिस्टम। इसमें बकायदा वो जो सिस्टम मैंने प्रिंसिपल बताया यहां उपयोग। और राइट हैंड साइड में जरा देखिए, जब ये पानी साफ हो रहा है, तो पहले गंदा पानी इकट्ठा होता था, यही होता था, और उसके बाहर भी बड़ा पॉन्ड था। अब जरा राइट हैंड साइड में पॉन्ड देखिए, और ये पूरा आप मैदान देखिए, किस तरह से जैव प्रकृति को यहां पे समायोजन हुआ। और निरर्थक पानी जिसकी हम बात कर रहे थे, अब ये पानी आ रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। और आज जो हालत हो रही है, मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप लोग जा सकते हैं तो इस गांव में जाइए, मुरवाड़ा में, और जाके वहां पे गांव वालों से पूछिए, गांव में देखिए कि कैसे व्यर्थ, जो कहते थे कि पानी नहीं है, नहीं आ सकता, कहां से लाएंगे, सरकारी नल लगाओ, 24 घंटे पानी दो, वो अब बातें सोच समझ के करते हैं। वो कहते हैं नहीं, नल आ रहा है, आने दो, पर अब हमारे पास पानी और भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं प्राकृतिक रूप से। इस प्रकार से आप वेस्ट मैनेजर्स को सोचना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड मैम। थोड़ा अपन जल्दी करते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व किया सेम अलग अलग गांव में, ये सारे एग्जीक्यूशन किए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब वेस्ट वाटर को, अब ये एक मॉडल सेम हमने जो अभी हम बात कर रहे हैं उसको हमने लिया। नेक्स्ट करिए। ये है चकरामनगर, बंजारा कम्युनिटी का विलेज है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जितने भी प्रिंसिपल मैंने बताए सब इसमें उपयोग किए, इंटरवेंशन किया इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे। जो कुएं सूख चुके थे, जिसमें फिजियोलॉजिकली ड्राई हो चुका था, 15 साल से सूखा कुआ था, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, और कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। बंजारा कम्युनिटी थी, डिप्राइव्ड था, तो हमने सोशल इंक्लूजन भी किया। जब जेंडर इक्विटी की बात होती है, तो कैसे हमने जेंडर इक्विटी एंड सोशल इंक्लूजन किया। तो आपका एसडीजी 5 हो, चाहे डिप्राइव्ड कम्युनिटीज की हम बात हो, उन सबको इसमें उपयोग किया गया, उन सबकी इसमें नॉलेज को। तो बंजारा कम्युनिटी आप जानते हैं, जिप्सीज ऑफ इंडिया, दे आर वेल नोन, वो बहुत अच्छे जाने जाते हैं अपने जल प्रबंधन के लिए। तो मुझे मौका मिला था कि यहाँ पे इन कम्युनिटीज के साथ काम करने का, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के साथ। तो बंजारा कम्युनिटी हो, चाहे अनेक प्रकार की जो एससीज, एसटीज, डीएनटी कम्युनिटीज हो, तो इनकी जब मैंने पूरी हिस्ट्री लिखी कि इनका उद्भव कैसे हुआ, तो यहाँ पे इनका आया कि ये तो जल प्रबंधन के माहिर लोग हैं। तो माहिर लोग हैं, तो क्यों ना इनके यहाँ मॉडल बनाया जाए। जब इनको मोटिवेट किया, इनकी इंडिजिनियस नॉलेज का इसमें उपयोग किया। गंदा पानी इनके उसमें आ रहा है, उनको ट्रीटमेंट कैसे होगा, पानी की व्यवस्था जो यहाँ पे नहीं थी, जो और इनकी बच्चियों के साथ जो शोषण हो रहा था, जो अपर वर्क कर रहे थे, क्योंकि ये पानी जो है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से जो लेके आ रही थी, उनका सबकी जब व्यवस्था हुई, और आप देख लीजिए फिर क्या परिवर्तन आया। नेक्स्ट करिएगा। और इसमें महिलाओं को ही हमने पूर्णतः जागृत किया। ये बूढ़े बूढ़े लोग, अब इसमें से कोई जिंदा नहीं है, माफ कीजिएगा मैं ये जो शब्द बोल रहा हूं, ये प्लांटेशन का जब महत्व इनको समझ में आया, जब इनको समझ में आया कि हमने क्या खो दिया है, हम क्या देके जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। आज इसमें से केवल एक बूढ़े बाबा एक बचे, बाकी सारे जो बुजुर्ग लोग हैं इस गांव के, जो इस चित्र में भी दिख रहे हैं, और भी इसमें जुड़ाव थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने आगे जो मुहिम जगाई। नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये वो महिलाएं, तो ये जो मैं बात कर रहा था पहले मूंज की, तो इनकी ये कलाकृति। तो हमने यही बोला कि वहां की जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, कि आप लोग ये कर रहे हो, पढ़ाई एक लेवल पे छोड़ रहे हो, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो वो बोलने लगे कि ये हमें आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल आपके लिए कर देंगे, कितना पैसा लगेगा। तो उस समय इनके मुंह से निकलता था कि 10 रुपए। अरे बाबूजी ये क्या पैसा लेना, ये तो आपने हमारा इतना काम करवाया, तो हम तो आपको वैसे ही बना के दे देंगे। हमने कहा नहीं, हमें एक नहीं चाहिए, दो नहीं चाहिए, हमें तो हजारों में चाहिए। तो वो बड़े शौक लगा उनको, हजारों में क्या करेंगे आप। हमने कहा हम जैसा बताएंगे वैसा काम करना है, और इसकी कीमत क्या होगी वो बताइए।
फिर इनको इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी पूरी इकोनॉमिक्स बताई कि अपरोक्ष और परोक्ष रूप से इसका क्या महत्व है, और उसके साथ इन्होंने काम किया। और फिर देखिए मिरेकल क्या हो, नाबार्ड हमारे साथ आ गई, कई एजेंसी प्रशासन साथ में आ गया, और ये एक मॉडल क्रिएट हुआ विमेनप्रेन्योरशिप का, यानी केवल विमेन ने अपने पूरे गांव को कैसे उनकी नीड, पानी की समस्याओं से लेके शोषण जो होता था उनको अपग्रेड करते हुए फिर कैसे इनको रोजगार से जुड़ाव हुआ। और जो एसएचजी का कॉन्सेप्ट है उसमें बिल्कुल रिवर्स में कर दिया हमने यहाँ कि नहीं, एसएचजी बनाना केवल लिंक करके उनको लोन से नहीं जोड़ना है, उनको पहले रोजगार में तैयार करना है और उसके बाद जोड़ना है। जरा नेक्स्ट करिएगा स्लाइड, नेक्स्ट। ये देखिए डिमांड, और ये देखिए ये अभी जो पैंडेमिक हुआ ना, यही महिलाएं वो कह रही है कि अब ये तो हम कर रहे हैं, अपना जो ज्ञान है अब हमें थोड़ा आधुनिक करना है। तो आप देखिए इसमें 2-3 प्रकार की मशीनें आपको दिख रही होगी। एक जो पारंपरिक मशीन पहले इनको तैयार करवाया, उनका जो ज्ञान था, जो उनका नेचुरल टैलेंट था, उसका तो उपयोग चल रहा है वहां पे, लेकिन उनको पहले पारंपरिक मशीनों से तैयार करवाया, और उसके बाद जो मॉडर्न मशीनें थी, आप ये देख सकते हो बीच में सेंट्रल में एक बच्ची काम कर रही है, और जो ये टीम तैयार हुई। तो उसके बाद जरा देखिएगा पैंडेमिक में क्या हुआ, नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये हुआ है कोरोना में, जब हमारे हिंदुस्तान को शायद पता नहीं चल रहा था कि कोरोना की जैसी भयानक त्रासदी आने वाली है, तब हमारी इन महिलाओं को, बच्चियों को पता चल चुका था। और जो ये हमने तैयारी करवाई थी, इन्होंने 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर किस प्रकार के मास्क बनने चाहिए। और ये गांव मतलब लगभग हमारे आजू बाजू के 60-70 गांव थे जिसमें कोरोना का एक भी टेंशन नहीं था, और उनको पता था कि प्रायोगिक रूप से कौन सी वनस्पति यहां हमारे लिए उपयोगी है, कौन से, और यहां से मास्क की बेइंतहा सप्लाई की गई। बहुत मास्क हमारे यहां से वो हुए, और कई हमने डोनेट किए। पूरे राजस्थान में यहां पे मास्क जाते थे, और स्पेशल परमिशन हमें दी गई थी कि आपकी गाड़ियां कहीं भी रोकी नहीं जाएगी, तो वो प्रथम लहर हो चाहे द्वितीय लहर हो, इन महिलाओं के लिए। और रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया इस एक्टिविटी के कारण। देखिए रोजगार का, यानी उस समय जब वापस ये लोग गांव में आए तो कैसे रोजगार मिले, इन महिलाओं ने बता दिया, और ऐसी गांव ने बता दिया कि हमारे यहाँ तो रोजगार था, हमने ही कहीं ना कहीं उसको मिस किया। और आज इधर हमें वो सब मिलेंगे, क्योंकि इन बंजारों का एक और जोरदार टैलेंट है। आप अगर मुंबई में जाएंगे माया नगरी में, तो वहां जितनी भी सेलिब्रिटीज है, उनकी जो मेहंदी लगाते हैं, वो मेहंदी आप जानते हैं, उसमें से मैक्सिमम आपको बंजारास मिलेंगे। माफ कीजिएगा, अब जो मैं बात बोलने वाला हूं कि अगर आप मुंबई के या मेट्रो सिटीज के जितने भी आप बार जो है, ये वाइन शॉप्स वगैरह, या जो शब्द है बार गर्ल्स की अगर मैं बात करूं, या ऐसे गर्ल्स जो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग में ला रहे हैं, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें, तो आपको जानकर बड़ा मेरे ख्याल से पता भी होगा शायद कि राजस्थान का यही पार्ट है ईस्टर्न बेल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, और लगभग नॉर्थ का वो पार्ट करता हुआ, जहां पे मैक्सिमम आपका बंजारा कम्युनिटी, कंजर कम्युनिटीज, गाडुलिया, लोहार, इन सब की कम्युनिटीज से वहां पे लिंकेजेस हैं। तो वो जब सारे वापस यहाँ पे आए, तो वो भली धौलपुर हो, भरतपुर हो, इन सब महिलाओं के साथ जब हमने कार्य किया, तो आज उन जो जिसके लिए हम नेगेटिव बोलते हैं, उन सब से वापस रिकवर हुई, और हमें स्पेशल परमिशन दी गई थी उनके साथ कार्य करने के लिए। मैं एक मेल होते हुए भी मुझे एक लेटर्स प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन का, यानी कि जेल की तरफ से था। आप जानते हैं कि जेल में महिला कैदियों के उसमें कोई पुरुष जा नहीं सकता, लेकिन मेरा सौभाग्य मिला, प्रकृति ने मुझे वो दिया, और मेरी टीम को ये मिला कि मैं वहां जाता था, बकायदा हम यहाँ पे काम करते थे, कार्य करते थे, और इनको इस तरह मोबिलाइज करते थे। और आज वो महिलाएं, वो एक पावर है, टीम है, और फक्र से बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं में से एक बच्ची निकली है जो बंजारा अटायर के उसमें इंडस्ट्री डालने के लिए फैशन टेक्नोलॉजी में उसने अपना कैरियर बनाया, और उसने टॉप किया सारे शहरी बच्चियों को छोड़ते हुए, और उसने टॉप किया। उसका उदाहरण आज वो दिल्ली के अंदर है, और वो इसी में कार्यरत है, कार्य कर रही है। ऐसी महिलाएं 7 बच्चियां थी जिसको हमने नाम ही विमेन ये वॉरियर्स दिया, और वो आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पे कार्य। नेक्स्ट स्लाइड मैम। आई थिंक समय शायद बहुत हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, मैं 5 मिनट में वाइंड अप करता हूं मैम। ये आपको साइंटिफिकली भी आपको मिलेंगे, नेट में भी आप सर्च करेंगे तो ये सब मॉडल्स मिल सकते हैं। और जो मैंने बात बोली है, कैसे पानी इनकी नीड थी, और उसको लेते लेते एक पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट किया गया। तो आप वेस्ट को लेते हुए और उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जब आप कार्य करेंगे, डेफिनेटली आप विनर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, ये कॉर्पोरेट लेवल पे, नेक्स्ट स्लाइड।
कॉर्पोरेट की मैं बहुत नहीं करूंगा, लेकिन ये जो मैंने रीड बैच सिस्टम की बात की है, ये भली अपने हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ और एक्सट्रीम वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह हमने कॉर्पोरेट लेवल पे इसके साइंटिफिक मैंने बहुत छोटे में कॉलाज बना दिया है, लेकिन हर एक का आंकड़ा भी दे रखा है कि ये टॉक्सिक वेस्ट है या कंपोजिट वेस्ट है या किस प्रकार का वेस्ट है, कितना घातक है, कौन कौन सी प्रजातियां उसमें। और आप देख लीजिए ऊपर जो भी बना हुआ है ये गार्डन टाइप लग रहा है आपको, ये है वेस्ट मैनेजमेंट का तरल यानी द्रव्य की हम जब बात कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट का, तो गंदे पानी को जो ग्रे वाटर ब्लैक वाटर जिसकी भी बात कर रहे हैं उन वेस्ट को कैसे हमने रिफाइन किया, और बीच में कंपैरिजन में आप बॉटल्स दे रखा है और बायोडाइवर्सिटी जो डेवलप हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये देखिए ये हाउसिंग सोसाइटीज में भी बने, मुंबई की कई हाउसिंग सोसाइटीज है जिसमें आपको ये वेस्ट मैनेजमेंट मिलेंगे। तो प्रकृति ने मुझे मौका दिया और नेचुरल सॉल्यूशन जिसके लिए मैं कार्य करता रहा हूं, उनके साथ जब हमने ये कार्य किया तो आज लहल आते हुए आपको गार्डन्स मिलेंगे। कोई नहीं कह सकता कि इस गार्डन के नीचे सो कॉल्ड गंदा पानी बदबूदार पानी साफ होके वापस पुनः चक्रित हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये अफ्रीका का जो हमारे अंडर में था उसका मैंने उदाहरण जानबूझ के दिया है क्योंकि हेलीकॉप्टर से हमें पूरा देखना पड़ता था और फॉरेस्ट के फॉरेस्ट डेवलप किए इसमें। ये पेट्रोलियम का था, अब तो वहां हालत भयावह है और पूरा जो सहारन नेशंस हैं, सूडान हो, साउथ सूडान हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, इथियोपिया हो, वहां पे जो एनर्जी के ऊपर जब बात चल रही थी तो मुझे मौका मिला था इन सबके साथ कार्य करने का। तो मिडिल ईस्ट हो चाहे ये सहारन नेशंस हो, जितने भी अरेबिक बेल्ट है उसमें इनका वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करके बायोडाइवर्सिटी का डेवलपमेंट हो। तो ये आंकड़े मैंने सिंपल दिए कि आप देखिए इस गंदे पानी से कैसे फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं, और ये चित्र केवल ग्राफिक के नजरिए से कि इतने बड़े फॉरेस्ट एरियाज डेवलप किए गए बड़े स्तर पे। तो आप छोटी सी चीज भी अपने लोकल से लेके यानी इंडिविजुअल लेवल से लेके वृहद स्तर पे भी कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह है प्रकृति की महत्ता। प्रकृति सबके लिए सोचती है, केवल एक के लिए नहीं सोचती है। आप वेस्ट मैनेजर्स हैं, आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम। ये नागदा का है, मैं फटाफट इसमें भी बता देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। जिसको स्वच्छ भारत मिशन में अवार्ड मिला था, ये दिया गया था। मैंने अभी इसमें पूरी बात नहीं की कि नागदा को होलिस्टिक पूरी सिटी की मैंने कैसे प्लानिंग दी उनको, वो मैंने बात नहीं की। लेकिन जो उस समय मेरे पास केवल 15 से 20 दिन थे, 3 महीने का समय था, तो मैं केवल 2 चक्कर वहां पे लगा के गया था। उसमें इन्होंने क्या क्या किया, बस थोड़ी सी गलती इन्होंने की कि जो मैंने प्रजातियां वहां बताई थी वो प्रजातियां इतने कम समय में प्रोक्योर नहीं कर पाए थे। तो मेरे विरोध के बाद भी उन्होंने वो प्रजातियां लगा दी जो इस समय मन भावन होती है, वो भली अशोक के प्लांट हो चाहे पाम ट्रीज हो, वो जो सबको अट्रैक्ट करती है वो इसमें। तो अब ये देखिए ये ट्रेंच है कैसा था, ये गूगल से लिए हुए चित्र है 2015 के। नेक्स्ट करिएगा। ये डिजाइनिंग की है और कैसे की है, क्या की है, ये कभी विस्तृत रूप से जब हम चर्चा करेंगे या जो अभी हमारे ऑलरेडी पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसमें मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन ये एक सिंपल मॉडल दिया है, लेटरल व्यू। ये कचरे का ढेर है बीच वाला, उसके ऊपर बुद्ध को बिठाया है बीच में हमने। ये जो सीट दिख रही है ना, ये बुद्ध की मूर्ति है। कोई बिलीव नहीं कर सकता कि बुद्ध को आपने बिठाया है, तो यहाँ पे कैसे बिठाया है, लेकिन बुद्ध ने या हमारी उनकी शिक्षा ने बताया है कि देयर इज नथिंग, नो वेस्ट इज देयर एंड एवरीथिंग इज नेचुरल कंपोनेंट। तो यहाँ पे अब लोग आते हैं बड़ी शांति के लिए। जरा नेक्स्ट चित्र देखिए ना, नेक्स्ट स्लाइड करिए मैम। ये देखिए, ये जरा ऐसे दे रहे थे और मैं क्लोजअप इसमें नहीं डाल पाया। उसके जो विविध आयाम है, इसकी अंदर टॉक्सिक वेस्ट क्या था, वो सब कैलकुलेशंस किए हुए हैं, तो वो मैं आंकड़े अभी दे नहीं रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। ये था एक इन जनरल, मैंने इस पे ये जो क्रेन है इस पे चढ़ के थोड़ी कोशिश की थी कि मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी उतनी ऊंचाई पे मेरे को ले जा नहीं पाई। वो हाईएस्ट लेवल पे ही मैं चित्र ले पाया, इसमें बहुत मैं लेना चाह रहा था। नेक्स्ट। बदबू बहुत थी इसमें। ये देखिए, ये फिर चेंज हुआ, ये साइड पोस्ट इंटरवेंशन, उसके बाद ये हुआ। नेक्स्ट। और आज ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया है। उज्जैन नागदा के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपकी बस रुक सकती है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रही है तो आप रुको, यहाँ मस्ती से यहाँ पे आप अपना थोड़ा सा रिक्रिएशन करो, एंटरटेनमेंट करो। मैंने हालांकि इनको ये भी कहा था कि यहाँ पे आप ऑर्गेनिक फूड का, क्योंकि एक बहुत अच्छी रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो आप यहाँ की कम्युनिटीज के साथ मोबिलाइज होके यहाँ पे ऐसे वो लगा सकते हैं और बस स्टॉपेज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो शायद आगे नहीं कर पाए। और ऐसे ही मुझे छिंदवाड़ा और खंडवा में भी जब मौका मिला तो उनको भी किया, लेकिन पैंडेमिक आने के कारण वहां पे वर्कआउट में ज्यादा नहीं कर पाया। नेक्स्ट। ये देखिए, ये कंपैरिजन दिया है केवल एक ही स्लाइड में कि पहले क्या था और उसके बाद क्या हो गया, जस्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। सो वेस्ट एज अ रिसोर्स। नेक्स्ट स्लाइड। जितना मैंने कहा, थोड़े साइंटिफिक जगत मानता है कि बड़ा क्रूअल है कि आप थोड़ा सा वो बताइए हमें आंकड़ों के साथ और थोड़ा लेखन में, तो उनको भी थोड़ा हम ऐसे छोटे मोटे आर्टिकल्स लिख के बता देते हैं, काम करते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो हमें क्या करना है,
बस यही सब कुछ करना है जो आपके सामने है कि पारंपरिक तरीकों को कहीं ना कहीं हमारी आज के जो आधुनिक पाठ्यक्रम है उसमें इसका समायोजन करना है और जहां एम्प्लॉय करें तो उससे क्या एक जुड़ाव होगा। लास्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू मैम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, Professor Mehra, for this wonderful lecture. क्योंकि अभी एक घंटे से ज्यादा हो गया and I can still see more than 60 people still logged in. So that the whole credit goes to you. और हम तो चाहेंगे कि आप बिहार आके हमारे जो यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा गाइड करिए कैसे वो लोग कैसे इंटरव्यू कर सकते हैं and they can also do something for the society. सही में। और हम लास्ट नवंबर को हम गए थे राजस्थान, मुझे तो पहले पता होता मैं भरतपुर पहुंच जाता आपके गांव में सब देख लिखे। थैंक यू दीक्षा मैम कि अभी तक आप है हमारे साथ 1.5 घंटे से। The lecture was so interesting, तो बिल्कुल मिस करने का नहीं था, मैं बीच बीच में देख रही थी। Thank you sir for the opportunity, it was really very insightful और हमारे participants ने definitely benefit किया होगा आज के सेशन से। Yes ma'am. कोई क्विकली पूछ लीजिए क्योंकि अभी और एक कार्यक्रम है हमारा यहाँ पे, मुझे जाना होगा। यू कैन कंटिन्यू, यू कैन ऑल। इकबाल सर से गुजारिश है सर, नाउ इट इज नाउ ओपन फॉर डिस्कशन। किसी को कोई प्रश्न है 5 मिनट हम लोग समय लेंगे, 1-2 को अगर हम लोग मौका देंगे 1-2 मिनट के लिए। कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। इकबाल सर थोड़ा देख लीजिएगा, कोई अगर होती है तो आप। और मैं स्पेशल थैंक्स बिकॉज वो एक स्लाइड वो चेंज कर रहे थे एक्चुअली। या ही इज माय इग्नू ऑफिशियल है हमारे। माय स्पेशल थैंक्स टू इकबाल सर। थैंक यू डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा जी, चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहा और टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन यह है कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और दीक्षा मैम, चूंकि मैं देख पा रहा हूँ, चूंकि ओपनिंग में जो आपने 2-3 चीजें भाई, हमारा जो आज का जो टॉपिक है इको एथिकल अप्रोच हमारा जो है, और वो भी जो है वेस्ट मैनेजमेंट, और वो भी इंडियन पर्सपेक्टिव, 3 चीजें हैं। बड़ा अच्छा लगा मैम को सुन के, जो है चूंकि अचानक मेरे ये जब सुबह पता लगा कि इसमें इस तरीके हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें ये आया कि हमें हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया में इस तरीके से है नहीं, और आपका अवेयरनेस लेवल बहुत कम है, आपका ना कल्चर है ना हैबिट लेवल हमें बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमने जो वेस्ट के जब आ चुके, मैं आपको बताऊं, जैसे कि सत्य प्रकाश मेहरा जी ने कहा कि आपने इतने सारे चीजें, आप लंबे चौड़े भाषण करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या किया है। तो सर मैं बताऊंगा, हमारे रीजनल डायरेक्टर सर यहाँ मौजूद हैं, हम लोगों ने अपने चैरिटी बिगन साइड फ्रॉम होम करके, तो हमने ये कहा कि हमारे यहाँ से भी जो मतलब यह है कि आपका वेस्ट मैनेजमेंट में आपके मेटल्स है, ग्लासेस है, आपका प्लास्टिक है, पेपर्स है, हमने ये इग्नो में शुरू किया हुआ प्लास्टिक फ्री जोन। हमने वो उसमें ये किया कि हमारे यहाँ जो असाइनमेंट जमा होता है लगभग 2.5-3 लाख यहाँ पे जो अपना स्टडी सेंटर्स के लिए कोशिश किया हुआ है, तो उसमें जो है आरडी सर के मतलब यह है कि उनके विजन से हम लोग क्या क्या है कि जो बच्चे उनको हम डिस्करेज करते हैं कि आप प्लास्टिक फोल्डर्स में हमें असाइनमेंट मत जमा कीजिए, पेपर्स का जो फोल्डर उसमें जमा कीजिए, ताकि हम लोग डिस्करेज करते हैं। तो एक शुरुआत है कि हमें प्रैक्टिकल लेवल पे क्या करना है। ये सारी चीजें जो है ना, चूंकि मैं देख पा रहा हूँ, चाहे अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, इंडिया में आपने क्या किया हुआ, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और ये सारी चीजें जो है आपने जो 2-3 चीजें बताई, मुझे खासतौर से एक लर्नर के तौर से, मैं अलग इस फील्ड का नहीं हूँ, लेकिन ये कि आज इतना अच्छा लगा कि आपने इकोनॉमी से जोड़ा, अर्थ को जोड़ा और इकोलॉजी से जोड़ा। अगर ये चीजें मुझे याद है कि अगर ये ट्रेडिशन बिलीफ से आपने जोड़ा, मुझे याद है, क्योंकि मुझे कहने में हर्ज नहीं है, चूंकि सब लोग रिकॉल करते हैं कि मैं जब घर से निकलता हूँ, आता हूँ अपने ऑफिस में, तो हाईवे पे देखता हूँ कि जो एनिमल्स मेरे पड़े हुए हैं, जो है ना पशुएं पड़ी है, गाय ज्यादातर होती है, प्लास्टिक उसने खाया, और वो जो है ना उसमें जो है ना कुत्ते जो है नोच रहे होते हैं। वल्चर्स तो है जहाँ है नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना हुआ है। आपने जो एस्प्रो वगैरह के चिड़ियों का बात किया, गिद्ध है नहीं। अब वो जो ना सॉलिड वेस्ट का जो वो कंसेप्ट है, जो मरे हुए पशु, उनको कौन करेगा। अब उसको जो है ना, चूंकि अवेयरनेस लाना है गवर्नमेंट सेक्टर पे, चूंकि सब हाईवे पे पड़ी हुई है, उससे कितनी परेशानी होती है सबको हमको जाना है। तो आपने जो हंगर जो आपने बताया कि पॉपुलेशन को जाना है, जो सोशली बैकवर्ड है, हमने गाँव में देखा था, जो पशुएं मर जाती तो उनको जो है ना स्किनिंग करते थे, फिर वो जो है ना वो कहीं डिस्पोज करते थे, फिर वो जो है ना उसकी खाले निकाल के वो फिर हड्डियों को करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा सत्य प्रकाश जी हमने रिकॉल किया कि उस तरीके से चारी अगर हम करें,
हंगर को इसको जोड़ते हैं, इकोनॉमी से जुड़ा, उसको पर्यावरण के साथ साथ उसके जो अगर ये हो तो उसमें इकोनॉमी आ सकती है। क्योंकि आपने सही कहा कि बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, तो अगर उस लेवल पे लेके जाए कि अगर इसको जो है वेस्ट को जो है डिस्पोज करा, उसमें इकोनॉमी अगर उसका आपका है, पता चले इसमें इकोनॉमी भी बड़ा हाथ है, तो वो सोलो हम लोग कर सकते हुए हैं। और स्वच्छता अभियान खास तौर से भारत सरकार का 3.0 जो इस मुहिम में है, तो हम लोग भी लगे हुए हैं। तो हम लोग सब लोग चाहें कि अवेयरनेस, कल्चर, हैबिट को जो मैम ने बताया था, हम लोग इस मोटे पे चेंज करें, आगे बढ़े। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि उसमें हमारे बहुत सारे एकेडमिक काउंसलर्स और जो है सोशल वर्कर, वेरियर्स इंटरनली जुड़े हुए हैं। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो अच्छा लगेगा, ऐसा जैसे नहीं बताया, हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आप तमाम लोगों का धन्यवाद। और कोई अगर किसी का, मैं देख पा रहा हूँ किसी ने हैंड रेज किया हुआ, संदीप शर्मा पहले से अभी हमारे साथ डॉक्टर मेहरा, मेरे 2 कलीग है, एक भागलपुर के और एक दरभंगा के जुड़े हुए यहाँ पे। दरभंगा से डॉक्टर राजीव कुमार है हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, वो भी एनवायरमेंट साइंस के आपके, तो इसीलिए उनसे 2 मिनट सुनेंगे। उसके बाद तिवारी जी है हमारा भागलपुर से, ओम प्रकाश तिवारी, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पे, क्योंकि तीनों रीजनल सेंटर को उनसे 1-1 मिनट सुनना चाहेंगे। डॉक्टर राजीव कुमार प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं दीक्षा मैम को, अभिलाष नायक सर को धन्यवाद दूंगा कि ऐसा मौका मिला। वास्तविकता में मैं भी एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और चूंकि ये है जिसे हम कह सकते हैं कि वर्क स्पीड लाउडर देन वर्ड्स, तो ये वो एक एग्जाम्पल है मेरे लिए। हम लोगों का अपना व्यक्तित्व था। मैं पहले इग्नू ज्वाइन करने से पहले भी A to Z करके एक ग्रुप था, जिसको हम लोगों ने PPP मॉडल के तहत, अगर आपको जानकारी होगी तो, मतलब वास्तविकता में लगता है जब काम करते हैं तो एक्चुअल जो अप्रेजल मिलता है इस काम का, वो अल्टीमेट है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि मेरे लिए वो पुराना लग रहा था, जैसे PG और PhD में जो सारा फाइटो रेमिडिएशन का काम किया, बाकी और जो चीज़ें रही, तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने बिल्कुल एक मानचित्र की तरह गुजर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर राजीव। ओम प्रकाश तिवारी जी, इनके स्वाद है, अभी तो देखा था मैंने। थैंक यू वेरी मच सर, और आप सभी लोगों को धन्यवाद सर। इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन डॉक्टर मेहरा जी के द्वारा दिया गया, और सबसे यूनिक बात रही सर पूरे प्रेजेंटेशन की कि सर का जो फील्ड का अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा, उसी को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। और शायद ये एक ऐसी चीज़ है कि यदि इस तरह के डॉक्टर मेहरा जैसे एक्टिविस्ट यदि हमारे समाज में और बड़ी संख्या में मौजूद हों, तो डेफिनेटली हम अपने अर्थ और इन्वायरमेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से बचा पाएंगे सर। और मैं तो बहुत कम लेक्चर ऐसा सुना हूँ सर कि जो अपने किए गए प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप और तरह तरह के अभियानों के आधार पे जो अनुभव रहा, उसको उन्होंने शेयर किया सर। किताबी नॉलेज तो हम लोगों को हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नॉलेज जो अपने एक्सपीरियंसेस से, जो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद, जो काम करने के बाद फील्ड में आता है सर, वो बहुत ही होती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेहरा जी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी एक सवाल है, सवाल ले लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड द मीटिंग टुडे। संदीप जी प्लीज, आप पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। संदीप शर्मा, नहीं तो मैं पटेल जी को, मुझे लगता है कि संदीप शर्मा जी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। नाउ ओवर टू मिस्टर संजय पटेल, आवर Good afternoon, everyone. I am Sanjay Patel, Deputy Registrar of IGNOU Regional Center, Patna. It is my privilege and honor to propose a vote of thanks on behalf of IGNOU. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Satyaprakash Mehra, State Coordinator, Rajasthan, CIFAR, ICRAP, Asia Continental Program, Rajasthan Agriculture Research Institute, for delivering a very enlightening and informative talk on eco-ethical approach to management in Indian perspective. His talk was very relevant and insightful for all of us who are involved in the field of education, social development and waste management. We appreciate his valuable time and expertise that he shared with us today. I am grateful to Dr. Diksha Debe, Program Coordinator, SOITS, IGNOU Headquarters, for being our special invitee
and for highlighting the various initiatives and activities undertaken by SOITS in promoting environmental education and awareness among the learners and the stakeholders. I would also like to thank Dr. Abhilash Nayak, Senior Regional Director, IGNOU Regional Center Patna and Darbhanga, for being the driving force behind organizing this talk under Swachhata Abhiyan 3.0. His vision and leadership have enabled us to host this event and learn from the eminent speaker. We are grateful for his constant support and guidance, sir. I would also like to acknowledge the efforts of Dr. Sara Nasrin, Regional Director, IGNOU RC Bhagalpur, for coordinating with the participant under the jurisdiction of IGNOU RC Bhagalpur. She has ensured the smooth registration and participation of the learners and functionaries from her region. We thank her for her cooperation and collaboration. I'd also like to thank, I would also like to appreciate the work of Dr. Shalini Dikshit, ARD, for micromanaging, coordinating the program for her, and also for her warm welcome address and for setting the tone and context of the session. She has taken care of all technical and logistical aspects of the event and made sure that everything runs smoothly. We thank her for her dedication and hard work. A big thank to Dr. Asif Iqbal, ARD, IGNOU Regional Center, Patna, for managing the summary session, question and answer session. I would also like to extend my thanks to all the coordinators, part-time functionaries, counselors and learners from Regional Center Patna, Darbhanga and Bhagalpur for participating in the event and making it a success. I would like to extend my special thanks to Dr. Rajiv Kumar, ARD Darbhanga, Dr. O.P. Tiwari, RC Bhagalpur, Dr. K. Nilofar, ARD Headquarters, for participating in the program and encouraging us. Your presence and interaction have added value and richness to the program. We hope that you gained some useful knowledge and insights from the talk. I'd also like to thank all my colleagues from IGNOU Regional Center Patna, Darbhanga and Bhagalpur for organizing and participating in the event. Your teamwork and cooperation have made this event possible and successful. We thank you for your commitment and enthusiasm. I would also like to acknowledge the active participation and interaction of all the attendees who have enriched the session with their queries, comments and feedbacks. I hope you all have gained some useful knowledge and insights. Last but not the least, I would also like to thank all others who were directly or indirectly involved in organizing or participating in the program. Your support and assistance have been invaluable for us. With this, I conclude my vote of thanks. I hope all have enjoyed the program as much as we did. Thank you everyone. सभी को धन्यवाद सर। मेहरा साहब फिर मिलेंगे, आपको और एक बार बुलाएंगे। थैंक यू।